भाई ले लूंगा, नहीं खाओगे बच्चे।
Very warm welcome, ladies and gentlemen. We'll be beginning with our prestigious event today in just a short while. Ladies and gentlemen, in the meanwhile, we humbly request you to please enjoy tea and coffee, which is being served in the lobby just adjacent to this hall. We request you to please help yourself with some tea and coffee. In just a short while, we will be beginning with our prestigious event today. Arun, I must send you this IACC background. Ladies and gentlemen, for your convenience, tea and coffee are going to be served here itself in this very hall. Moments away, we're now
about to begin with our prestigious event, so I humbly request you all to please have a seat, please settle down.
हुए ही नहीं हुए लाइन नहीं पाते हैं यहाँ पे। वो चलाते हुए क्लिक करना है, इसमें भी तो जूम पड़ा है। मंत्री से लोग उसके बातचीत करते हैं। फोटो खींचने के लिए।
very good morning, a very warm welcome, ladies and gentlemen. Thank you so much for taking out your valuable time just to be a part of this prestigious event. I humbly welcome our own dignitaries, our esteemed guests, and our friends from print and media. A very warm welcome to each one of you. I would like to extend a warm welcome to our honorable dignitaries who are joining us virtually from different parts of the country. A very good morning to you. And our honorable dignitaries who are joining us from different time zones and different parts of the globe. A very good evening to you, wherever there is listening. Ladies and gentlemen, my name is Malika, and it gives me immense pleasure to welcome all our wonderful guests out here to this splendid event. नमस्कार, स्वागतम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं इस कार्यक्रम की मंच संचालिका। मेरा नाम है मल्लिका यश अस्थाना और मैं आप सभी का लखनऊ शहर में आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर इस समारोह में उपस्थित हो सके। Ladies and gentlemen, it gives us great pleasure and it is a matter of great honor for us to welcome you to this grand launch of the Lucknow chapter of Indo-American Chamber of Commerce, an event which has brought together some of the most remarkable personalities who have been gracious enough to join us both physically and through the digital platform from various parts of the world. आज के इस गौरवशाली अवसर पर हमारे लिए ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच ऐसी गणमान्य हस्तियां आज यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। As your host today, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to welcome our distinguished guests who have joined us today from the United States of America to our very own country, India. India, as you all know, is a land which is synonymous with its friendship, hospitality, and love for all humanity. And our program is conducted today in the city of Nawabs, Lucknow, in the state of Uttar Pradesh. As you all know, with its size as big as the fifth nation of the world, Uttar Pradesh is undoubtedly one of India's most prominent states. It would not be inappropriate to say that India's road to progress passes via Uttar Pradesh. And when we talk about the glorious city of Lucknow, which is also known as the city of Nawabs, the golden city of the East, Shiraz-e-Hind, Constantinople of India, Lucknow happens to be the home of extraordinary monuments, Awadhi culture, Nawabi literature, performing arts, fine cuisine, music, polite mannerisms, and its sprawling gardens, which put Lucknow a cut above the rest. And when you're in Lucknow, it is only natural that I welcome you in the most traditional manner, since Lucknow has its own love for poetry. So it is only apt that I welcome you with a few couplets which are ये शहर है अदब और आदाब का, ये शहर है अदब और आदाब का, ये शहर है अदब और आदाब का, ये शहर है मेरा लेकिन उससे पहले आपका। तो बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ शहर में आप सभी का। These lines literally mean that the people of Lucknow are absolutely polite, courteous, and friendly, and we have a tendency of putting the needs of others above our own. For us, our guests are of prime importance to us. So a very warm welcome to Lucknow. आज इस कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर एक बहुत ही खास मकसद से एकजुट हुए हैं और वो मकसद है इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के लखनऊ चैप्टर के ग्रैंड लॉन्च का। हालांकि इस चैप्टर के कार्यकलाप पिछले 1 वर्ष से जारी रहे हैं, लेकिन आज आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में इसका ऑफिशियल लॉन्च होने जा रहा है और ये हमारे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि आज इस लॉन्च में हमारे बीच ऐसी विशिष्ट हस्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं जिनकी मौजूदगी के साथ इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। So it takes me immense pleasure to welcome our honorable chief guests for this program today. I request you with a big round of applause. We'll welcome all of them out here. Our honorable chief guest today, Shri Siddharthnath Singh ji, a very warm welcome. Honorable Cabinet Minister, MSME, Investment and Export, Textile, Khadi, Gram Udyog, Government of Uttar Pradesh. Welcome, sir. Our chief guest, Shri Brijesh Pathak ji,
Honorable Cabinet Minister, Legislative and Justice, Rural Engineering Service, Uttar Pradesh. A very warm welcome, sir. Let's have a big round of applause. Shri Swatantra Dev Singh Ji, President, Bharatiya Janata Party, Uttar Pradesh, our honorable chief guest. Welcome, sir. We also take great pleasure in welcoming our guest of honors today, who have been kind enough to join us. Please give it up for Mr. Mukul Singhal, IAS, Chairman, Board of Revenue, Uttar Pradesh. Mr. Manoj Singh, IAS, Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh. Mr. Binod Kumar Singh, IPS, Additional Director General Security, Uttar Pradesh. And it gives us immense pleasure to welcome all our honorable dignitaries who have joined us from the United States of America. We welcome our guest of honor, Mr. Michael Rosenthal. A big hand of applause for him, Director, North India Office, U.S. Embassy. We welcome Travis Cordially, Economic Officer, North India Office, U.S. Embassy. We welcome Kavleen Chatwal, Economic and Political Specialist, North India Office, U.S. Embassy. We also welcome Jui Bhandare, EPAP, North India Office, Public Affairs, U.S. Embassy. And we are honored to welcome our guest of honor, Mr. Alok Ranjan, IAS, former Chief Secretary, Uttar Pradesh, Senior Board Advisor, Arthur D. Little. We welcome a very special guest, Ms. Sudha Singh. A big hand of applause for her. एक जानी मानी इंटरनेशनल एथलीट हैं सुधा जी, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड और यश भारती सम्मान जैसी कई अवार्ड्स हासिल करे हैं. We also welcome Shri Rashpal Singh Ji, Chairman, Puran Offices, Employment Bureau and Co-Chair, Punjab Committee, WTC Business and Industry Association. We're also honored to welcome Shri Sarvesh Asthana Ji. A big hand of applause for him. जिनको कौन नहीं जानता, देश के जाने माने और लोकप्रिय हास्य कवि हैं, जिनको स्माइल मैन के नाम से सब लोग जानते हैं. We are also absolutely thrilled to welcome none other than Padma Shri Sunil Jogi Ji. जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए. पद्मश्री और यश भारती सम्मान से नवाजे गए बहुचर्चित कवि, मां फाउंडेशन के संस्थापक हैं ये. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. And ladies and gentlemen, it is our immense pleasure to welcome the corporate stalwarts who are also present here through the digital media, through the virtual platform, representatives of IACC. We welcome Mr. Purna Chandra Rao, National President, IACC. We'll be sharing a small message from him in just a short while. We're joined today by Mr. Raman Roy. Let's give it up a big hand of applause for him. Regional President, IACC-NIC, Managing Director, Quattro, Founder, Indian Angel Network, former Chairman, NASCOM. We're also joined today by Mr. Rohit Kochar, Vice President, Indo-American Chamber of Commerce, North India Council, and founding member and managing partner, Kochar and Company. Let's keep the applause going, ladies and gentlemen. And we're also honored to welcome Mr. Arun Karna, Regional Vice President, IACC-NIC, and Managing Director and CEO, AT&T Global Network Services, India Private Limited. And with this, ladies and gentlemen, I humbly request you all to please stand up at your respective places as a mark of respect for our national anthem. आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हमारे राष्ट्रगान के सम्मान में और हमारे साथ गाएं. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much.
And with this, ladies and gentlemen, it is now time to give an auspicious start to our prestigious event with the auspicious lamp lighting ceremony. I request our honorable dignitaries who are present here to please do the honor and begin our prestigious program with lighting up the ceremonial lamp. I request our honorable chief guests, our guest of honors, along with our special guests to please do the honors and begin our program by lighting up the ceremonial lamp. हम हमारे सभी दिग्गज अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को एक शुभ आरंभ दें दीप प्रज्वलन के साथ। हमारी भारतीय सभ्यता में हमेशा से ये मान्यता रही है। I welcome Shri Swatantra Dev Singh ji, Shri Brijesh Pathak ji, Shri Siddharthnath Singh ji, along with Mr. Michael Rosenthal, Shri Mukul Singhal ji, Shri Manoj Singh ji, Shri Binod Kumar Singh ji, along with Ms. Kashish Tyagi, Mr. Alok Ranjan, Shri Mukesh Singh ji, and Padma Shri Dr. Sunil Jogi ji. भारतीय संस्कृति में हमेशा ये मान्यता रही है कि हमेशा अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है। उसी तरह आज भी with lighting this ceremonial lamp we believe that the mighty power will bless us in all our future endeavors. Thank you so much, gentlemen. और इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आभार व्यक्त करने का एक मौका चाहेंगे हमारे सभी दिग्गज हस्तियों ने जिन्होंने अपना बेशकीमती समय अपने इस कार्यक्रम को दिया। आज एक लम्हा हम लेना चाहेंगे उनका आभार व्यक्त करने के लिए। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्री ब्रिजेश पाठक जी का, our honorable chief guest today. Let's give it up a big hand of applause for honorable Shri Brijesh Pathak ji. I request sir to please join us. And मैं अनुरोध करती हूँ जसमीर सिंह जी से IACC सेक्रेटेरिएट कि वो उनका पुष्पगुच्छ के साथ मंच पर स्वागत करें। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। जसमीर सिंह जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे उनका पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। Kashish Tyagi ji, IACC Regional Director, IACC-NIC, to please welcome sir with a memento. And I humbly request Mr. Mukesh Singh, Executive Council Member, IACC, to please welcome sir with a beautiful memento right here. We have एक स्मृति चिन्ह हम सर को भेंट करना चाहेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी मुकेश सिंह जी से। मैं मुकेश सिंह जी से अनुरोध एक बार फिर करती हूँ कि भगवान श्री राम जी की एक प्रतिमा हमारे पास यहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा प्रेम और आदर के साथ सर को भेंट करना चाहेंगे। तालियां थोड़ी और दमदार हो सकती हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। In this league, we humbly welcome our honorable chief guest today, Shri Siddharthnath Singh ji, to please join us. A big hand of applause for him, ladies and gentlemen. I request Ms. Kashish Tyagi to please welcome him with a bouquet. Mr. Mukesh Singh is welcoming him with a bouquet. I request Ms. Kashish Tyagi to join him, welcoming him with a memento. और श्री मुकेश सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगी कि भगवान श्री राम जी की उस खूबसूरत प्रतिमा के साथ आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। In this league, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to welcome Shri Swatantra Dev Singh ji, our honorable chief guest today. A big hand of applause for him. आज के इस विशेष अवसर पर आपने अपना बेशकीमती समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। A very warm welcome, sir.
In this league, it gives us great pleasure to welcome Mr. Michael Rosenthal, our guest of honor. A very warm welcome to you, sir. Let's have a big hand of applause for him. Ms. Kashish Tyagi is welcoming him with a bouquet. I request Mr. Mukesh Singh to please welcome him. We have Ms. Neelu Sadana, Regional Secretary, IACC-NIC, welcoming him with a book, memento. और श्री मुकेश सिंह जी, उनका स्वागत प्रतीक चिन्ह के साथ कर रहे हैं। भगवान श्री राम का प्रतीक चिन्ह है ये। Very warm welcome to you, sir. In this league, we welcome Shri Manoj Kumar, IAS, our honorable guest of honor, to please join us. With a big round of applause, ladies and gentlemen. We have Ms. Neelu Sadana welcoming him now with a memento. And Mr. Mukesh Singh welcoming him with this beautiful image of Lord Ram. Thank you so much, sir. Thank you for joining us. Ladies and gentlemen, please give it up for Mr. Mukul Singhal, IAS, our honorable guest of honor, who has taken his valuable time just to be a part of this prestigious event. Welcome, sir. Ms. Neelu Sadana welcoming him with a bouquet. In order to express our gratitude, we're presenting a beautiful deity of Lord Sri Ram. We also welcome Shri Vinod Kumar Singh, Honorable IPS, our honorable guest of honor. Very warm welcome to you, sir. Let's keep the applause going, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir, for your valuable time. And with this, we're delighted to welcome Mr. Alok Ranjan, IAS, our honorable guest of honor. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से कुछ समय निकाला। Thank you so much, ladies. Thank you so much, sir. And in this league, ladies and gentlemen, in order to officially kickstart this program, let me invite on stage a very respectable man who is here amongst us. Let me please have the privilege of welcoming Mr. Mukesh Singh, Executive Council Member, IACC, Member of Board of Directors, who's here with us. I request, sir, to please share a few words and welcome you all. Thank you, Malika. Since Michael knows Hindi very well, so I will choose medium of Hindi to speak. आज 6 अगस्त को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लखनऊ चैप्टर का लॉन्च हो रहा है। मैं सबसे पहले आदरणीय सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह साहब, मेरे भाई जैसे ब्रजेश पाठक जी, मुकुल सिंघल साहब, मनोज सिंह साहब, आलोक रंजन जी, सुनील जोगी जी और यूएस एम्बेसी के डेलीगेट्स माइकल रोजेंथाल जी प्लस ट्रेविस, जूही और कवलिन,
मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश सरकार के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने जिन मिनिस्टर्स को और प्रदेश संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी को इसलिए चूज किया, क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सरकार और संगठन दोनों के समन्वय की आवश्यकता होती है। चैम्बर भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करता है और मैं पिछले कई वर्षों से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़ा हुआ हूं। मैं को चेयर रहा, अभी मैं वर्तमान में सीनियर एडवाइजर भी हूं और पीएचडी के भी सारे सेक्रेटरिएट के सीनियर लोग, योगेश जी, अतुल जी और सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जब चीफ गेस्ट का चुनाव हो रहा था तो हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया कि सिद्धार्थ नाथ सिंह जी का यहाँ रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एमएसएमई इंडस्ट्री को, वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ाना है, अगर स्टेट की जीडीपी को बढ़ाना है, तो सिद्धार्थ नाथ सिंह जी एक ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने जब से एमएसएमई का चार्ज लिया उन्होंने ऐसी गति दिया, क्योंकि वो बहुत ही लर्नेड मिनिस्टर हैं और सारे चैम्बर्स की वो पसंद होते हैं। हमारे बहुत सारे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो एनआईसी बैनर के तहत हम लोगों ने बहुत सारे वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें यूएस एम्बेसी की तरफ से माइकल ने कई बार उसको एड्रेस किया है। इसके अलावा प्रीथा राजानमन जी हेल्थ अटैची है, उन्होंने एड्रेस किया, मार्क जी एग्री अटैची है, उन्होंने एड्रेस किया। तो उस दृष्टिगत सिद्धार्थ नाथ सिंह जी का यहाँ पर रहना बहुत ही आवश्यक था। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से करता हूँ। स्वतंत्र देव सिंह साहब का इसलिए रहना जरूरी था, यूएस एम्बेसी ने मुझसे पर्सनली डेलीगेट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि संगठन को भी वो मिलना चाहते हैं, तो सर को हमने बहुत ही व्यस्ततम शेड्यूल उनका स्वतंत्र देव सिंह साहब का रहता है, क्योंकि संगठन उत्तर प्रदेश का संगठन और विश्व की एक तरीके से लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का जो दायित्व स्वतंत्र देव सिंह भाई साहब के कंधे पर है, उसको चलाने में कितना व्यस्त होंगे वो हम सब जानते हैं। बट अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोमेंटम चलाना है तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पर रहना बहुत ही जरूरत था। स्वतंत्र देव सिंह भाई साहब, आपने हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किया। मुझे याद है नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप, विनोद सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उस समय एडीजी पीएसी थे। इन विनोद सिंह साहब का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने उस परिस्थितियों में पूरा महानगर का जो हमारा ग्राउंड था, उन्होंने देश के एथलीट्स के लिए उन्होंने पूरा ग्राउंड अपनी तरफ से सहयोग में दिया था। और हम लोगों ने उस समय स्वतंत्र देव सिंह भाई साहब वहां पर आए थे, ब्रजेश पाठक जी भी थे। आप लोगों ने उस नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो क्वालिफाइंग था उसके लिए उन्होंने बहुत हम लोगों को सहयोग किया था। स्वतंत्र देव सिंह भाई साहब, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रजेश पाठक जी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं हम लोग, और सुख दुख सब में ब्रजेश पाठक जी का बड़ा सहयोग रहता है, हम लोग परिवार जैसे हैं। और हम उनको ये चाहते हैं, चैम्बर की तरफ से भी उनको बाद में मिल करके ये करेंगे कि आर्बिट्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है इंडस्ट्रीज के सामने, बिजनेसमैन के सामने बहुत सारे आर्बिट्रेशन के इश्यूज होते हैं। ब्रजेश पाठक जी के सामने प्रशांत चंद्रा जी बहुत सीनियर काउंसिल है, उनके माध्यम से हम लोगों ने बात को रखा हुआ है कि एक आर्बिट्रेशन सेल को हम लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। रोहित कोचर जी इस समय दुबई से हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट है। वो जानते हैं कि हम लोग आर्बिट्रेशन सेंटर एक खोलने की कवायद लगातार हम लोग कर रहे हैं, ताकि इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन के जो मैटर्स हैं उनको एक्सपेडाइट किया जा सके टाइमली। रोहित जी अभी अपने जो एड्रेस करेंगे दुबई से, वो आ नहीं पाए कोविड के चलते, अभी रोहित जी को हम लोग सुनेंगे। रमन राय जी हमारे रीजनल प्रेसिडेंट हैं, उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहता है। डॉक्टर भसीन अभी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आज नहीं आ पाए हैं। तो ये इस संगठन को यहाँ पर लाने के पीछे जो उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश सरकार को कैसे हम लोग बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट को उत्तर प्रदेश में ले आए, कैसे स्टेट की जीडीपी को बढ़ाएं, कैसे एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं, कैसे हम पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं। इसके लिए बायलैटरल ट्रेड का अगर कोई चैम्बर उत्तर प्रदेश में फंक्शन करता है तो निश्चित रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। यूएस एम्बेसी के डेलीगेट्स का यहाँ पर होना अपने आप में एक सांकेतिक है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर के साथ में उनका कितना क्लोजली एसोसिएशन है। और मैं माइकल यहाँ पर है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपना पूरा सहयोग दें। सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब हैं, स्वतंत्र देव सिंह साहब है, ब्रजेश पाठक जी है, तो एक सहयोग से जो है उत्तर प्रदेश की जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो पर कैपिटा इनकम है, उसको बढ़ाने में, स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में निश्चित रूप से चैम्बर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खड़ा है। क्योंकि हमने योगी आदित्यनाथ जी को देखा है कि 2017 से जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, जितना भी एक्सटॉर्शन का इशू था बिजनेसमैन के सामने, जितने भी माफियाइज्म का था, एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया है कि अगर कोई इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आता है तो न केवल इन्वेस्टर सिक्योर्ड है बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है, एक बड़ा मैसेज है। और यूएस एम्बेसी को मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को, उनकी लगातार मीटिंगें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चल रही हैं, तो मैं उनको सहयोग उनसे मांगता हूं अपने चैम्बर की तरफ से।
यहाँ पर बहुत सीनियर डेलीगेट्स और बहुत सारे सीनियर मेंबर्स इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े, मेरे कुलीग गौरव प्रकाश भी यहाँ बैठे, दूसरे चैम्बर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। राज स्मृति जी बहुत अच्छी राइटर है, उनका भी स्वागत। एसपी सिंह साहब बहुत सीनियर आईएएस अफसर पद से रिटायर हुए, बहुत लंबे समय तक उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट को देखा है। आज हमारे साथ वो आर्थर डी लिटिल जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ग्रुप है उसमें मेरे साथ वो एडवाइजर हैं। तो एक बड़ी टीम है जो काम कर रही है। सर्वेश जी देश के बड़े हास्य पोएट है, यहाँ पर मौजूद है। सुनील योगी जी मेरे दोस्त हैं, वो भी एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें मैं उनका सहयोगी हूँ, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, जिसमें उत्तर प्रदेश का चाहे वो इंटेलेक्ट हो, किसी भी तरीके से अगर एसेट है और उत्तर प्रदेश को कंट्रीब्यूट करता है तो उसमें वो सहयोग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देश के सम्मानित कवि भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज हम इस फोरम पे एक बड़े इंडस्ट्रीज को फेलिसिटेट करेंगे जिनका नाम है डॉक्टर ललित खेतान। डॉक्टर ललित खेतान रैडको खेतान के चेयरमैन है, और अभी जब पैंडेमिक की सीवियर क्राइसिस थी उस समय उन्होंने, सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में थे, सतीश माना साहब भी थे, उन्होंने कमिटमेंट किया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि हम ऑक्सीजन प्लांट्स देंगे। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन्होंने 6 ऑक्सीजन प्लांट्स आदरणीय सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब के कहने से उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, जिसमें एक ऑलरेडी बिलासपुर रामपुर में कमीशन हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने किया। 5 दूसरे जो प्लांट्स है वो भी कमीशन हो चुके हैं, उनका भी उद्घाटन होगा। तो इंडस्ट्रीज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि न केवल उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, न केवल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, बल्कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जहां कहीं भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वहां पर हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पैंडेमिक ने, मैंने पर्सनली जो है वो इंडो अमेरिकन चैम्बर के बैनर से उत्तर प्रदेश को 1 लाख लीटर से ज्यादा सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया था। तो इसलिए नहीं कि हमें एप्रिसिएशन चाहिए, बल्कि सोसाइटी के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ओन करना है और हमें अपना काम करना है। तो मैं एक बार पुनः आलोक रंजन साहब का, विनोद सिंह साहब का, मनोज सिंह साहब का, मुकुल सिंघल साहब का, माइकल का, सिद्धार्थ नाथ सिंह का साहब का, स्वतंत्र देव सिंह साहब का, ब्रजेश पाठक जी का, ट्रेविस, सुनील योगी जी, जूही, कैवलिन, में आप सभी का और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मल्लिका को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। जय। Thank you so much, sir, for sharing your thoughts and guiding us to the way forward. He's definitely a man of great vision, and whenever he speaks, people just get up and take notice. So with this, ladies and gentlemen, now we'll take this opportunity to hear a few words from another remarkable personality, a man who is respected by one and all. He is truly simplicity personified. I'm talking about none other than Mr. Purna Chandra Rao, National President, IACC. Mr. Purna Chandra Rao has shared a small message. We'll play that in just a bit. Mr. Rao has 28 years of rich experience in the design and development of software. He has an experience in all aspects of software development lifecycle. He is currently serving as the Managing Director, Global Info Vision Private Limited, Hyderabad, focusing on BPO projects in the areas of legal coding, document management, services, recruitment, and partnerships with various software vendors, product development, and strategic marketing, in addition to the management. He commutes frequently between India and USA, and today he has shared a very special message all the way from US. Can we have a look at the message, please? Good afternoon, everyone. First of all, I'm sorry that I'm not able to attend this function in person. It gives me immense pleasure that we are opening a new desk in the biggest state of India, Uttar Pradesh, and in a popular city, Lucknow. In several ways, it also stands special for me. This is the first time 2 new desks are open in one's presidential term. We've opened one in Goa in October 2020 and now in Lucknow. A lot of effort went into this, and for that I must first congratulate my colleague at the National Executive Committee, Mukesh Singh ji, and the whole NIC team, including the Secretariat. This is the kind of enthusiasm IACC requires in all regions. Since it is happening in my term, I am extra thankful to Dr. Bashinji, Mr. Raman Roy, Mukesh ji, Regional Director Kashish, and their team. On behalf of the Indo-American Chamber of Commerce, I would like to thank Honorable Ministers and other officials for sparing their valuable time today to start our Lucknow branch and interacting with our members. IACC is an apex bilateral chamber promoting Indo-US trade and investment for more than 53 years.
I also requested our Secretary General, Mr. Kashish, and their team. On behalf of the Indo-American Chamber of Commerce, I would like to thank honorable ministers and other officials for sparing their valuable time today to start our Lucknow branch. The state level and with the government of India at the national level. IACC is an apex bilateral chamber promoting. Thank you. Investment for more than 53 years. I'm sorry that I also requested our Secretary General, Mr. Kamal Vora, to give opening remarks on behalf of me. Finally, let me finish by wishing you all a success for IACC's Lucknow desk. Let's have a big round of applause, ladies and gentlemen. In unison with the government of Uttar Pradesh. And his blessings for this event and taking the event forward, ladies and gentlemen. And now we're joined through the digital platform by a person who is highly respected by one and all. He is an inspirational icon for many, a man who is truly a man of multiple talents and a great personality. He has an indefatigable spirit and love for his work. I'm talking about Mr. Raman Roy. Let's have a big round of applause for him. Regional President, IACC-NIC, Managing Director, Quattro, Founder, Indian Angel Network, former Chairman, NASCOM. Mr. Raman Roy is widely regarded as the pioneer and fondly referred to as the father of the Indian BPO industry. He is a pioneer 4 times over, having successfully led the BPO initiatives of American Express, GE, now Genpact, and Spectramine, now Wipro BPO, before incubating Quattro, which commenced operations in 2007. He's the ex-chairman of Executive Committee of NASCOM for financial year 2017-18, BPO Committee of ASSOCHAM, board member of Indo-American Chamber of Commerce, and he sits on the board of various prestigious committees formed by the central and state level government of India. We have with us Mr. Raman Roy, ladies and gentlemen. A big hand of applause for him, Regional President, IACC-NIC, joining us from Delhi. Thank you, Monica. Thank you very much. Mr. Brijesh Pathak, sir, Mr. Siddharthnath Singh, Mr. Suvatantra Dev Singh, Mr. Michael Rosenthal, Mr. Manoj Singh, Mr. Mukul Singhal. Good afternoon. It is my loss that I'm not there physically. I just had a death in the family and could not travel. However, it is a great occasion. Monica said, all roads to success go via Uttar Pradesh, and I'm a firm believer in that. I'm delighted to leverage technology to be able to join you from New Delhi on the inauguration of this chapter. May I join Mukesh Singh, our president, national president, in welcoming you to the launch of our Lucknow chapter. As the president of the Northern India Regional Council of IACC, with which this chapter is affiliated, it is a very proud moment for me and my team. When I took over as the regional president, it was my ambition to expand the footprint of IACC and create a membership base outside of Delhi and create the potential of cooperation between the northern region and the United States of America. And this is a giant step in that direction. Let me assure you that it is our commitment to build and nurture the chapter to expand IACC's growing footprint in the largest and the most populous state of the country, the state of Uttar Pradesh. That also means bringing the state closer to the United States for economic partnership with focus on 4 pillars: investment, trade, technology transfer, and most importantly, people-to-people contacts. Business happens through contacts. And now the pandemic has taught us that
we can leverage technology, which I'm leveraging to speak to you today, to be able to create these contacts. I've always felt that the state of of Uttar Pradesh has two distinct advantages: its size and population, which may be more than half of the countries put together in Europe. The United States put together will have only 80 million people more than the state of Uttar Pradesh. That puts in perspective the size of this state. I feel it is an advantage that we, our membership base, we as a state, we as a country, we as a political setup, we as a chamber which allows the trade to happen, we all need to take advantage and cash in on that. We are aware of the efforts of the state government to tap the potential in an accelerated and systematic manner. We are also aware of various schemes and projects that the state is embarking on. Under the leadership of our honorable ministers who've kindly consented to be available, we are focusing on skilling people, creating avenues of self-employment by creating the ecosystem for the MSME sector to grow and flourish. We all know that MSME sector is the backbone of growth of every economic growth that happens anywhere in the world. We are setting up special parks, special zones for investment, and a lot more that we are doing. IACC will be happy to assist the state and you honorable ministers in this endeavor, propagating the advantages of the state in various parts of the United States, and to make them aware of the investment potential and the drive of the new administration in the state, which means purely, entirely, and absolutely business, nothing else but business. I feel that the development priorities of the state, two things should get utmost importance. I happen to have the privilege of sitting on the board of the National Skill Development Council of India. It is my belief that skills is what will drive development. And even within the state of Uttar Pradesh, the foremost is the skill development. The state is now embarking on the massive skill development scheme. This is a welcome augmentation to where we are going. Equally important is matching the available skills with the requirements of the firms wanting to set up their units in the state. That is where we need to look at the crystal ball of what the future is and empower our youth to be able to gain skills in that category so that they can create jobs for themselves and they can add to the growth of the state and of the country. There is need to objectively look at the skill gaps in the state and take measures to impart such skills. Skill impartation should not be confined to the hallowed organizations like the IITs, the IIITs, or the management schools. It should run across to the grassroots of the organization, including polytechnics, ITIs, which create technicians and base level expertise. Sir, in this area where IACC can help in identifying institutions and enterprises in the United States, which can help the state to have tie-ups for future of mass scale skill formation, not alone in the base skill sets like welding, fabrication, etc., but also exposing the new entrants into the workforce in cutting-edge technologies and tools that use artificial intelligence, robotics, 3D, and other quantum technologies. These are the technologies that are going to rule the future of this country. 30 years ago, when I set up the BPO industry, the disbelievers, the non-believers who told me I was smoking something strange, we will never do international work out of India. Indian workforce was not capable, was not trained, was not educated. We proved them wrong. Today, over 1.7 million people directly
are employed doing international work from India, and this will only grow. Uttar Pradesh will form as a test bed for where we can take it to these next level technologies. At the start, Manika introduced you to Mr. Mukesh Singh as the member of the Executive Committee, our National Executive Committee of Indo-American Chamber of Commerce. It is my pleasure and privilege to add to the title of Mr. Mukesh Singh. Mr. Mukesh Singh will be the chairman of our Lucknow chapter. He has been a moving spirit in setting up this chapter, which I believe is going to play an important role in the overall growth of the state and building its synergies with the US for the economic partnership. Mr. Mukesh Singh, I look forward as the regional president to work closely with you to take it to the next level. Congratulations. Before I conclude, let me wish the chapter the very best and assure the chapter members that we will work as a team for the development of the state, and you can count on IACC-NIC for support and guidance in your pursuit to expand the activities of the state. With that, I hand you back to Manika, and thank you for giving me an opportunity to share my thoughts with you. Manika, over to you. So ladies and gentlemen, let's give it up one more time for Mr. Raman Roy, Regional President, IACC-NIC, who joined us from Delhi. Let's give it up a big round of applause for him. He's definitely an orator par excellence, and he definitely showed us that there are some exciting times ahead for the state of Uttar Pradesh. And now let me take this opportunity to welcome another remarkable personality who has a superhuman commitment towards his work and an incredibly charming personality. Ladies and gentlemen, I'm talking about a man who is joining us again through the digital platform, Mr. Rohit Kochar, Vice President, IACC-NIC, and founding member and managing partner, Kochar and Company. Mr. Rohit Kochar is one of India's most accomplished corporate lawyer and legal entrepreneur. For this, in the year 2008, he was awarded the International Council of Jurists Award by Dr. Manmohan Singh for his distinctive accomplishment in the legal entrepreneurship and corporate law. Mr. Rohit Kochar is also the founding member and managing partner of Kochar & Company. Kochar & Company offers wide range of legal services in the areas of corporate, commercial laws, specializes in representing major foreign and domestic operations with diverse business interests in India. Ladies and gentlemen, a big hand of applause for Mr. Rohit Kochar joining us from Dubai. Thank you very much, Manika, for that very kind and gracious introduction. I'm delighted to join from Dubai. Not so delighted that I could not be in the midst of you in person, but with the suspension of flights from Dubai to India and vice versa, travel became a challenge. But I hope to be, I mentioned to Kashish yesterday that at the earliest opportunity and the first opportunity, I will be in your beautiful city. Honorable ministers from the UP government, Mr. Mukesh Singh, Executive Council member, IACC, Mr. Michael Rosenthal, Director, US Embassy, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today is a historic day. My good friend, Mr. Raman Roy, said we're making a giant step, and I echo that. Today is a historic day for the IACC, the city of Lucknow, and in fact, the entire state of Uttar Pradesh. Friends, we are here to connect the state of UP with the United States like never before, to help unleash the gigantic potential of the state of UP and to make its growth vibrant and sustainable. Of course, all of this as envisioned by our Honorable Prime Minister, Mr. Modi, and also the Chief Minister of the state,
Mr. Yogi Adityanath, as well as all the leaders from UP who are gathered with us here today. Let me briefly talk about the IACC and its origin. Our fascinating journey began in 1968, so which is more than 5 decades ago. And during these 5 decades, the IACC has played a pivotal role in enhancing the economic partnership between India and the US. Friends, today, there is hardly any US company worth its salt, including, of course, all the global Fortune 500 companies from the US. They now have operations and offices in India. The Indo-American Chamber is a non-government, industry-led and industry-managed organization, playing a very proactive role in India's development process. We serve as a much-needed link between the business communities of India and the United States. The launch of the Lucknow chapter today will be a defining moment to ensure more robust ties between US companies and business and commerce in the state of UP. Let me touch upon briefly the potential of this great state. Despite macroeconomic headwinds that India has witnessed for so many years now, one state which has been a consistent outperformer is the great state of Uttar Pradesh. Let me share some fascinating facts and statistics, albeit very brief. With a GDP of 270 billion US dollars, the state of UP ranks 3rd amongst all Indian states. If you take the last financial year ending 31st March 2021, it's very interesting to note that while Indian GDP declined by more than 7%, the state of UP actually witnessed an increase of 8.3% in its GDP. If you take the 4-year period from 2017 to 2021, 88,000 crores. Friends, I repeat, 88,000 crores was the investment which the great state of UP attracted from all business sectors. What are the other defining features that make the state of UP really different and distinct than many other states? You take the leadership of the state and how the Chief Minister and other leaders of UP have imbibed ease of doing business in India norms, making UP an attractive destination for business as well as investment. UP has also been able to leverage key central government reforms, such as production-linked incentives, or PLI, as we call them, to attract substantial investments in diverse sectors. And these include manufacturing, electronics, and telecom. This, friends, is a fantastic example of what I call cooperative federalism, where a state has been able to imbibe and infuse the best of India's enabling policy environment. UP is also a shining example of recognizing that for industry and investment to flourish and thrive, states have to invest in infrastructure, just as UP has done. And despite economic constraints, it's heartening that UP has seen significant budget allocations to infrastructure, roadways, expressways, airports, and metros. All of this, of course, augurs very well for US-India partnership, and in particular, partnership between US companies and their UP counterparts. Friends, Indian industry has also been watching all of this with great interest and enthusiasm.
the rapid strides that the state has made, which is why if you take most of the Indian behemoths from the business sector, from Reliance Jio to BSNL, Tata Consultancy Services and Infosys, coupled with, and of course, a very different sector, a host of renewable energy companies have been making substantial investments in the state of UP. Interestingly, Uttar Pradesh is also known as the food basket of India, since it is a leading producer of so many food items. This, of course, will be of special interest to American companies with their natural global leadership in the agricultural sector. Two other interesting developments which I think would be of particular interest to US companies include the setting up of the UP Defense Corridor to attract and accelerate defense manufacturing in the state. The other is the establishment of large-scale industrial parks on a PPP basis. Friends, needless to say, with all of the above and whatever I shared with you, there are tremendous opportunities for US companies to collaborate with the state of UP and to work with their counterparts in the state for mutual benefit and gain. Undoubtedly, as Mr. Raman Roy also mentioned, the Indo-American Chamber of Commerce will play a pivotal and a key role in facilitating increased participation by US companies in UP's growth as well as transformation. Ladies and gentlemen, I conclude by congratulating the Indo-American Chamber of Commerce and the state of UP, along with its entire leadership, on the launch of the Lucknow chapter and this new innings of mutual cooperation, commitment, and collaboration. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Mr. Rohit Kochar, Vice President, IACC-NIC, all the way from Dubai. And with this, before we proceed with requesting Mr. Arun Karna to share a few words on this occasion, I would seek his permission only. I request Mr. Arun Karna, sir, if it is okay with you, a few of our guests have a bit of paucity of time, so I will request one of our guests of honor to share some of his words on his side, and then we'll take it forward, if it is okay. Sure, please go ahead, Monica. Absolutely. Okay, so thank you so much. And with this, ladies and gentlemen, it gives me guest of honor, Shri Manoj Singh Ji, IAS. I request him to share a few words on this occasion. Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh. Let's have a big hand of applause for him. Sir, a few words from your side. सर्वप्रथम परम आदरणीय श्री ब्रिजेश पाठक जी, परम आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, परम आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, respected Michael Rosenthal, respected guest joining online, Mr. Raman Roy, Aruna Karna, and Purna Rao ji, our esteemed senior Alok Ranjan ji, and last but not the least, Mr. Mukesh Singh ji. It gives me great pleasure, delight, and beguile to be here and attending this conference. It's a great enthusiasm for us that Indo-American Chamber, North India Council has now established a desk in Lucknow. This will go a long way in twinning between the two largest economy with regards to development of UP and to see how the GDP of UP can be increased.
Indo-American Chamber was established in 1968, especially with the ostensible objective of promoting bilateral cooperation and strategic business ties between two largest economies. And the whole friendship is based on complementarity rather than competition. We share the same ideology and epistemology with regards to democratic spirit, and we welcome you to Lucknow. Three areas where I would like to draw your attention, which has been told to me to draw attention of your partnership and relationship, is three sectors. Especially, we need help of US knowledge base and US investments. The first area is urbanization. As you know, urbanization in UP is very dispersed, and we have Kawal towns coupled with new towns like Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Meerut coming up. And we are this year preparing an urban planning, a master plan for 20 years. One of the areas where we will like to have a knowledge input is how we can replicate good urban planning techniques, which is adopted in America, especially in preparing of master plan, gentrification of our slums, embedding low-cost housing in our urban landscape, and how to make whole urbanization a sustainable urbanization. Next area where UP is looking forward, and Honorable Minister is also here, the MSME Minister. UP is a MSME giant, and we are very happy and proud of the scheme, which is called ODOP, which is transforming the industrial landscape of UP. This scheme is based on products manufacturing which are based on regional skills, regional specialization, and local resources. And this is doing very well. And in fact, if some help could come from the investment side in this scheme, we will make it a worldwide phenomena. The products are excellent, and lots of things will be told to you about by this scheme by the Honorable Minister. With regards to agriculture, horticulture is one of the area where we are looking forward for cooperation, especially the food processing industry, where still the penetration of food processing industry in rural area is very less, and we need some help in enhancing our storage capacity and processing of perishable products. As far as drip and sprinkler irrigation is concerned, this is another area where penetration in UP is only 4%. If we enhance it to 20-25%, we will definitely see another green revolution heralding in UP. As far as forest and environment is concerned, I would like to apprise you that environmental clearances in UP are being done at speedy manner, and we generally take 1 week to process all the environmental impact assessment proposals and also the pollution appraisal. So we are very much trying to see that the response time is reduced, and we will be forthcoming any investment which is coming to UP through this chapter. We will take on utmost priority and see that it is expedited and the clearances are given in the time. The area of forest and environment, which I see coupled with climate change, is one of the areas where immense potentiality of cooperation is there. We are going for afforestation of various degraded forests in UP, and we are adopting technologies like geotagging to ensure the survival of the trees. And in the month of July only, we planted 30 crores tree
And in last 5 years, this government has planted 1 billion tree in UP. That is a great step, a great honor, and a yeoman's service by the Forest Department to the Uttar Pradesh. Another area where we need some help is our tiger reserves, enhancing the population of tiger, elephant reserves, and sanctuaries, where modern technologies for surveillance has to be adopted. And we want to seek cooperation in the menace of poaching, which is going on. Coupled with this, in environment sector, latest technologies of carbon capture and providing carbon sink, we have seen US has adopted lots of new innovations. And I was going through YouTube and I saw Honorable Bill Gates. He has established a carbon capture factory, which is equivalent to 30 million trees of carbon capture. Now, these kind of technology needs to be transferred in India so that we can sequester carbon, we can attend our targets, which has been given by Paris Accord, and lots of thing has to be done in urban pollution also, where air pollution is creating lots of problem, especially in months of November and December, where winters heralds in northern India. So these are some of the areas where we need your active cooperation. We are again enraptured since you are now situated and embedded in Lucknow. You will see lots of things where new areas of cooperation can emerge, and lots of obfuscation of policies, befogging of policies, which is there in the minds of investors, can be mitigated by clearing this off, by going for reforms, and by seeing how fast we can implement your wishes and evince your interest in investment in UP. Once again, I express my gratitude, my thanks to all of you, and it's a great pleasure once again to have you in Lucknow. Thank you very much. Thank you so much, sir. और धीरे धीरे अब ये कार्यक्रम उन लम्हों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है जब हम हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथियों के विचारों से लाभ ले सकेंगे, उनके विचारों से मार्गदर्शन पा सकेंगे. लेकिन उससे पहले, ladies and gentlemen, we will resume with hearing a few words from our corporate stalwarts who have joined us through the digital platform. And in this league, the next personality is truly a man who is simplicity and honesty personified. He has a sheer zeal and zest for his work. Ladies and gentlemen, I'm talking about none other than Mr. Arun Karna, Regional Vice President, IACC-NIC, and Managing Director and CEO, AT&T Global Network Services India Private Limited. Mr. Arun Karna is an experienced business leader with more than 29 years of experience in the telecom and IT industry. He is responsible for overseeing AT&T's sales and customer engagement throughout the country. An extremely effective coach and mentor of teams, he is adept at providing leadership in a global cross-cultural environment. Joining us from Delhi. Thank you so much for the kind introduction, America. Shri Rajesh Pathak ji, Shri Siddharthnath Singh ji, Shri Swatantra Sev Singh ji, Mr. Michael Rosenthal, Shri Manoj Singh ji, Shri Mukul Singhal ji, Shri Vinod Kumar Singh ji, Shri Alok Ranjan ji, the IACC leadership team, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm extremely honored and privileged to be speaking to you from this platform today. Of course, this is no replacement for being there in person. But, still, I'm honored that you gave me the chance to speak with you from this platform today. I join the previous esteemed speakers who came before me in welcoming you all to this launch of the Lucknow chapter of the Indo-American Chamber of Commerce, particularly Honorable Minister for MSMEs, Investment and Export, Textiles, Khadi and Gram Udyog, Shri Siddharthnath Singh ji,
Thank you so much for having me here. The eminent speakers who came before me have already referred to the inherent advantages of the state of Uttar Pradesh and how partnerships can be forged in different sectors for mutual advantage. Now, let me focus on a subject which is closer to my area of operation, and that is the whole ICT sector, or the information and communications technology sector. I feel there's a lot of scope for the state to attract investments in the electronics hardware, design, and component manufacturing, given that both the government of India and the state government of Uttar Pradesh are giving a lot of importance to promote domestic production of these goods, not only to meet the increasing demand in the country, but also to make strong forays into the export market, like what we have achieved in the computer software arena. As we all know, the government of India has introduced the productivity-linked incentive scheme for some champion sectors, including the ICT sector, primarily to build capacities and increase exports. Now, these incentives are also available to the MSME sector and the foreign companies which operate from the country. As you would know, the ecosystem of the ICT sector is pretty unique and probably a little bit different from the rest of the segments. For instance, it involves global supply chains, contract manufacturers, design companies, component manufacturers, etc., all part of a single ecosystem. They work in their separate space and their operational scopes are specified separately. For example, Apple works through their contract manufacturers like Foxconn and Wistron, etc., who in turn source their products and components globally, including from India. So I feel there is a lot of component manufacturing that can take place in India, which can be undertaken in the MSME sector itself, which are relatively capital light, and in some cases can be in the category of plug and play. These entities can come up in special clusters, which I understand the state of Uttar Pradesh is actively contemplating, and that is extremely heartening to note. Now, the state has several such units in Noida already. My understanding is that many companies, both from India and abroad, are trying to set up their units in India and scouting for land in Uttar Pradesh specifically, which augurs very well, of course. The other point that I would like to make is about expanding the footprint of the computer software industry in Uttar Pradesh. Now, Noida already has a prominent position in the world software development and IT services map. A lot of companies, including Fortune 500 companies, have set up their development and research centers, incubation centers in Noida. Now, this success can be easily replicated in cities like Agra, Meerut, Varanasi, and Lucknow itself. And that can create a really knock-on effect in terms of gainful employment opportunities all across the state. So, sir, fair to state that there is no dearth of ideas as to how to make the state more dynamic, growth-centric, and a perfect example of inclusive growth, which we already see that the state administration is aiming at under your very able leadership. Our chapters in Lucknow and Varanasi will act as the fountainheads to transmit and make sure that such dreams are actualized, and look forward to the concepts and approaches being sort of multiplied many folds to assist the state administration and local industry. With that said, I wish the Lucknow chapter of the Indo-American Chamber of Commerce and the state of UP all success and all the best for the partnership and collaboration in the times to come. Thanks so much for having me here again. And back to you, Manika, please. Thank you. Ladies and gentlemen, let's hear it one more time for Mr. Arun Karna. Thank you so much, sir, for those kind words. And with this, taking the program forward, what is life if it is not full of surprises? So yes, ladies and gentlemen, now we will begin with the prestigious launch event for which you all had been waiting with bated breath. So now we're proceeding with the official launch of the Lucknow chapter of Indo-American Chamber of Commerce. To do the honors,
First up, with the online virtual launch, I request our honorable dignitaries to please do the honor. Shri Swatantra Dev Singh Ji, Shri Brijesh Pathak Ji, Shri Siddharth Nath Singh Ji, Mr. Michael Rosenthal, Shri Manoj Singh Ji, Shri Binod Kumar Singh Ji, Ms. Kashish Tyagi, Mr. Mukesh Singh, and Padma Shri Dr. Sunil Jogi Ji. So first, ladies and gentlemen, we're beginning with the online, that is the virtual launch of the Lucknow chapter of Indo-American Chamber of Commerce. I request you all to please help me with a thunderous round of applause. एक बार दमदार तालियां होनी चाहिए एक नई शुरुआत के लिए. And with this, ladies and gentlemen, now it is time for the official offline launch of the Lucknow chapter of Indo-American Chamber of Commerce. To do the honor, may I request once again our honorable dignitaries to please join us and do the honor here. तो उत्तर प्रदेश के उज्जवल विकास की तरफ आज यहाँ पर एक नई शुरुआत होने जा रही है. लखनऊ चैप्टर का ऑफिशियल लॉन्च इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है. लखनऊ शहर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए आज हमारे लिए एक बहुत ही खास मौका है. Let's give it up, ladies and gentlemen, for a brilliant new start and to all the good times coming ahead. Some really exciting future for Uttar Pradesh, definitely. मुझे लगता है इतनी सी तालियों से आज काम नहीं चलेगा. जिस मकसद के लिए हम आए हैं उसमें तालियों की बहुत जरूरत है. थैंक यू मलिका. अब जरा भी हम लोग समय को बचाते हुए, क्योंकि सभी माननीय मंत्रीगण और प्रदेश अध्यक्ष जी का समय बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अब सीधे आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माइकल रोजेंथल, नॉर्थ इंडिया ऑफिस डायरेक्टर, टू गिव हिज रिमार्क्स. आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू ऑनरेबल मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी. Thank you for that introduction. On behalf of the U.S. mission to India and the North India office, which leads engagement with Uttar Pradesh and 7 other states and territories, I'm deeply honored to help open the Lucknow chapter of the Indo-American Chamber of Commerce. This is an exciting day, and I'd like to congratulate all of the ICC team who have made it possible and the honorable dignitaries who have shared their time to be with us here today. And if you don't mind, I'd like to start with a few words in Hindi. नमस्कार जी. आज आपके साथ होने के निमंत्रण के लिए धन्यवाद. ये मेरे लिए एक सम्मानजनक बात है. ये उत्तर प्रदेश और अमेरिकी के लिए एक अहम दिन है. मुझे आशा है कि IACC की लखनऊ शाखा उत्तर प्रदेश के विकास में सहायक होगी. कंपनियों और अर्थव्यवस्था को विकसित कराने और समाज में ज्ञान के आदान प्रदान के लिए नया निवेश महत्वपूर्ण है. उत्तर प्रदेश और अमेरिका के बीच घनिष्ठ मित्रता है जो इन आर्थिक संबंधों का समर्थन करती है. लेकिन मैं अब अंग्रेजी में बोलूंगा क्योंकि ये global business की भाषा है और मेरी मातृभाषा है. So, returning to English, let me explain why I believe this is an exciting day. For decades, the IACC has strengthened ties of investment and trade between the United States and India.
The US Embassy's North India office and IACC's North India Council have been important partners at the regional level. Together, we've achieved economic results and strengthened US-India ties. I'm therefore confident that the Lucknow office will bring results for Uttar Pradesh and also help strengthen the US-India relationship. Now, let me explain why Uttar Pradesh is so important for the United States. It starts with the size of the state and its long history of achievement, playing an important role in Indian civilization. Today, it is a strong economy powered by innovative firms and talented individuals. It's home to world-class universities and other institutions. It attracts tourists from the United States and around the world. US connections with Uttar Pradesh have a long history, but are incredibly diverse today. Our people have been visiting each other since well before independence. Post-independence in India, the US government was proud to support a number of projects in Uttar Pradesh, including the development of the Indian Institute of Technology in Kanpur into a world-class institution, linking it with US partner universities. Today, we're proud to note sister city relationships, including between Agra and Tempe, Arizona. We would be happy to further support relationships between Uttar Pradesh states or Uttar Pradesh itself. You may know that several towns in the United States, such as Lucknow, Pennsylvania, and Agra, Kansas, have been named after counterparts here. US officials have been coming to visit the state. As we saw previously, President Trump came in 2020. Governors from Kentucky and Texas have been before that. And we've been very proud to host UP officials traveling to the United States. I would note that people from Uttar Pradesh have also touched my life. As a young boy in Los Angeles growing up, my best friend was a boy named Manoj Gupta, whose parents had come from the Aligarh area to become doctors. I learned about Indian culture from him. Later, as a US diplomat, my instructor was a man named Vinod Kumar, who had come from Lucknow, previously a journalist, and taught me to say, "Hum dukan ja rahe hain," and the "Main dukan ja raha hoon." He also was incredibly polite and saying "Pehle aap" every time he would enter the doorway, and was an important conveyor of Lucknow and UP culture to us who are studying it. These ties between Uttar Pradesh and the United States were why my organization, the North India Office, was created in 2015. We seek to strengthen the ties of people, economics, commerce, culture, education, and more. At the same time, US private firms have been increasing their investment in Uttar Pradesh, and I understand that the United States is one of Uttar Pradesh's top export partners. This is why we are so confident that the opening of the new IACC chapter will only add to these ties. It's part of the US-India relationship, which we are confident will continue to grow and which has been called a comprehensive global strategic partnership by our leaders. It spans the scope of human endeavor, including trade and investment, climate, science, technology, defense, counterterrorism, and more. US-India cooperation has taken an even more important role as in the shared Indo-Pacific region has become more important for the world and our cooperation to sustaining the world's-based international order. But economic ties are an important pillar, have been and will be, of our relationship. The US is India's top partner in trade and investment, and India is the United States' 9th largest partner. These ties have been ever so important during the COVID pandemic, which has affected all of us. Just as India came to the aid of the United States and the rest of the world, exporting pharmaceuticals and other important items, the United States has found it important to stand with India during the COVID pandemic, providing over $200 million of US government support and over $400 million of private sector and diaspora support, including for Uttar Pradesh. Today, though, we look to rebuild our economies as we continue to focus on our health. And we believe it's an important moment for Uttar Pradesh and India to take advantage of possible supply chain relocation. And the United States would like to be an important partner for India in this. This may not always happen naturally, though, and we think we would like to continue working on this. In our experience, trade and investment generally flow where markets are open, where regulation is light and predictable, and where infrastructure and human capital are strong. We're encouraged that Prime Minister Modi prioritized joining global and regional supply chains in his August 2020 Economic and Independence Day speech, and that a number of important economic reforms have been announced. We've also observed important efforts by the government of Uttar Pradesh to improve the business climate here, and the results are clear. This all means that IACC has wonderful timing in opening this Lucknow chapter. In closing, I would like to say that we have much to look forward to.
We believe that the IACC's decision to open a Lucknow chapter will be remembered as a turning point in starting a new institution and creating a catalyst for more trade and investment between our two peoples. I'm also optimistic about the US-India relationship and look forward to working with all of you in the days to come. Thank you. Dhanyavad. Thank you, sir. Since all Indians believe in the phrase Vasudev Kutumbakam from the Maha Upanishads, which literally means that the whole world is just one big happy family. So it is with this belief, love, regard, and affection, we once again thank you for joining us today with your entire team. Once again, let's hear it, ladies and gentlemen, with Michael Rosenthal, Director, North India Office, US Embassy. Aaj sir ki Hindi sunkar, it has given us a run for our money as well. और इनकी हिंदी का शब्द उच्चारण इतना क्लिष्ट है, इतना साफ है कि मैं थोड़ी देर हिंदी में नहीं बात करूंगी. I'll stick to English again. And now, ladies and gentlemen, we are coming together with a very special felicitation ceremony where we mark this occasion to express our gratitude and honor some of the most remarkable personalities who have earned a great name for themselves and they have brought great laurels not only to themselves, their family, and the entire state of Uttar Pradesh, but to our country as well. ऐसी हस्तियां जो या तो उत्तर प्रदेश में जन्मी हैं या तो जो उत्तर प्रदेश में अपने कार्य प्रयासों के द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में इतना नाम हासिल कर रही हैं कि आज हम ये मौका लेंगे उनको सम्मानित करने का. तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारी समस्त गणमान्य अतिथियों से कि वे उनका सम्मान करें. Ladies and gentlemen, I request our honorable dignitaries to please join us and do the honor, and we'll begin with the felicitation ceremony. First up in this league, ladies and gentlemen, we have Dr. Lalit Khaitan. Let's have a big hand of applause for him. I request our honorable dignitaries to please join us on the dais. I request Shri Manoj Singh ji, Shri Binod Kumar Singh ji. डॉक्टर ललित खेतान जी देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं और उनकी जगह पर महेश गुप्ता जी आए हुए हैं और धन्यवाद वो ऑनलाइन ज्ञापित करेंगे. डॉक्टर ललित खेतान जी उनका मैंने आपने पूर्व संबोधन में भी बोला था कि डॉक्टर ललित खेतान जी एक ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को पैंडेमिक में अपने 6 ऑक्सीजन प्लांट्स लगा करके सहयोग दिया है. महेश गुप्ता जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर ललित खेतान जी का मेमेंटो आप आकर करके ग्रहण करें. Ladies and gentlemen, Dr. Lalit Khaitan, Chairman and Managing Director, Radico Khaitan Limited, a veteran with over 50 years of experience. He's one of the pioneers in the Indian spirits industry. COVID-19 महामारी के दौरान, उनकी दूसरी लहर के दौरान, उन्होंने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 6 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट स्थापित करवाए थे. आगे बढ़ते हुए हमारी इस कड़ी में अगला नाम है Shri Rashpal Singh ji ka, Chairman Puran Overseas Employment Bureau and Co-Chair Punjab Committee WTC Business and Industry Association. He's working with the UAE, Doha, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, and various other countries for human resource requirement. Let's give it up. A big round of applause for him and welcome him, Shri Rashpal Singh ji. And in this league, ladies and gentlemen, we welcome Miss Sudha Singh. A big round of applause for her. Sudha Singh ji एक जानी मानी इंटरनेशनल एथलीट हैं जिन्होंने वर्ष 2009 से लेकर अब तक अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाया है. भारत सरकार ने सुधा जी को 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए नामित किया है. Congratulations, ma'am. Please welcome Mr. Sarvesh Asthana. A big round of applause for him. श्री सर्वेश अस्थाना जी देश के जाने माने और लोकप्रिय हास्य कवि और लेखक हैं. आप हिंदी साहित्य के विकास और साहित्यकारों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं. आपने अमेरिका के 12 राज्यों के 22 शहरों न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो, न्यू जर्सी जैसे कई शहरों में अपने काव्य का पाठ किया है. Congratulations, sir. And in this league, ladies and gentlemen, the next name is of a very renowned personality, Padma Shri Dr. सुनील जोगी जी का अगला नाम जोरदार तालियों का हकदार है. डॉक्टर सुनील जोगी जी बहुचर्चित कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व का नाम है. आपने देश विदेश में 5000 से अधिक कवि सम्मेलनों में कविता पाठ किया है. डॉक्टर सुनील जोगी जी हास्य और व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर हैं.
इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर सम्मान होना है, डॉक्टर संतोषानंद जी, जो लगभग 90 वर्ष के हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी है हमारे उत्तर प्रदेश की, उसको आगे बढ़ाना। डॉक्टर संतोषानंद जी अगर यहाँ पर हो तो मैं चाहूंगा कि उनको कोई असिस्ट कर करके आगे की तरफ व्हील चेयर से ले आएगा। विष्णु, एक मिनट, यहाँ बैठे हुए क्या? अच्छा ठीक है, तो आगे आगे आप। और इसी कड़ी में स्वागत करिए श्रीमती श्वेता सिंह जी का। गोरखपुर जिले से आने वाली श्रीमती श्वेता सिंह जी हिंदी के प्रसिद्ध कवयित्री हैं। श्वेता जी का शायराना अंदाज, गजल, कवि सम्मेलनों में हास परिहास श्रोताओं को जुड़ने के लिए मजबूर कर देता है। श्वेता जी ने देश के अनेक कवि सम्मेलनों और मंचों पर अपने गीत और गजलों की प्रस्तुति दी है। कांग्रेचुलेशंस मैम, लेट्स गिव इट अप फॉर मिस श्वेता सिंह। इसी कड़ी में अगला नाम डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी का है। आगरा से आने वाली और जानी मानी कवयित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी सामाजिक, पारिवारिक, प्रेम और आम जनमानस के मन को छूने वाली संस्कारों से भरी गीत और रचनाओं का लेखन और पाठ करती हैं। कवयित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी की रचनाएं सुनकर आपको यकीनन अपनी माँ की याद आ जाएगी। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी के काव्य पाठ का अंदाज ही निराला है। कंग्रेचुलेशंस मैम। इसी कड़ी में अगला नाम श्री बलराम श्रीवास्तव जी का, जोरदार तालियों के हकदार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से आने वाले श्री बलराम श्रीवास्तव जी शानदार कविता और गीतों के लिए विख्यात हैं। आपका कविता पाठ अनायास श्रोताओं के मन को मोह लेता है। आपने देश और विदेश में अनेक कवि सम्मेलनों, महोत्सवों और टीवी चैनलों पर अपने गीतों और कविताओं की प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत स्वागत है बलराम श्रीवास्तव जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी कड़ी में हमारे बीच श्री संतोषानंद जी भी आ चुके हैं। मैं चाहूंगी आज इस माहौल में सबसे दमदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। श्री संतोषानंद जी जो हिंदी फिल्मों के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। मोहब्बत है क्या चीज, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, मारा ठुमका, बदल गई चाल मितवा, मैं ना भूलूंगा, इन सभी तमाम बेहतरीन यादगार एवरग्रीन गानों के लेखक हैं वो। और आज हम ये लम्हा लेना चाहेंगे उनको सम्मानित करने का। Congratulations, sir. Moving forward in this league, we welcome Shri Gajendra Priyanshu ji. श्री गजेंद्र प्रियांशु जी हास्य और व्यंग के लोकप्रिय कवि और युवा गीतकार हैं। श्री गजेंद्र जी ने कवि सम्मेलनों में अपनी हास्य कविताओं से श्रोताओं को गुदगुदाया तो सियासी व्यंग से महफिलों में रंग भी जमाया है। उन्होंने गीत और संविधान के निर्माता, राम अखिलेश्वर जैसे कई यहाँ पर लेख भी लिखे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो सर। अगला नाम डॉक्टर राजीव राज जी। डॉक्टर राजीव राज हिंदी कविता और मुक्तक रचना के लिए जाने जाते हैं। काव्य संग्रह वेदना के फूल, गजल संग्रह एहसासों की डोली में ऐसे आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। जोरदार तालियों के हकदार हैं डॉक्टर राजीव राज जी। इसी कड़ी में अगला नाम डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। अलीगढ़ में जन्मे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी रस के गीतकार, सौंदर्य के कवि और प्रेम के पुजारी हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी के गीत कथ्य की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न मंचों पर यश भारती सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किए जा चुके डॉक्टर विष्णु सक्सेना। नेक्स्ट अप डॉक्टर रामेंद्र मोहन त्रिपाठी, प्लीज गिव इट अप फॉर हिम। लेखक, कवि और सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी कई दशकों से हिंदी मंचों पर अपने बेहतरीन गीतों के साथ प्रतिष्ठित रहे हैं। आपने कविता की हर विधा में श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। डॉक्टर रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी कड़ी में अगला नाम श्री सोम ठाकुर जी का है। दमदार तालियों के हकदार श्री सोम ठाकुर जी ब्रिज भाषा के छंद और बेमिसाल लोकगीतों के और इसके बाद ललित खेतान जी का एक एड्रेस रह गया था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए श्री सोम ठाकुर जी के लिए। डॉक्टर खेतान सर का 1 मिनट का एड्रेस है, उसके बाद मैं सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एड्रेस यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को दें। 1 मिनट के लिए डॉक्टर खेतान को कनेक्ट कर दीजिए, वो अपना धन्यवाद दे दे। फिर डॉक्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब।
Dr. Lalit Khetan, sir. Haji, I'm on. Yes, sir, you are on. Yes. Am I audible, Mukesh ji? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. Well, thank you very much for inviting me. Honorable Minister Sri Swatantra Devji Singh ji, Sri Siddharth Nath Singh, Sri Brajesh Pathak, officials from government departments, Sri Mukul Singhal, Sri Manoj Singh, Sri Vinod Kumar Singh, respected officials from US Embassy, Sri Lalit Bhasin, Sri Mukesh Bahadur, all other respected dignitaries. Sir, Radico is honored and privileged to receive this felicitation from Indo-American Chamber of Commerce. We are very happy that we are able to contribute 6 oxygen plants in Uttar Pradesh, and also that 3 of the plants are already operational. The first plant at Bilaspur was inaugurated by Sri Mukul Abbas Naqvi, Honorable Union Minister, along with Sri Baldev Singh Aulakji, Honorable State Minister of UP for Jal Shakti. 2 other plants which are operational are in Rampur and Kausambi. We are also happy that the other 3 plants would be operational before 20th of August this month in Mahoba, in Prayagraj, and also in Chhattisgarh. Radico sir is doing its bit consistently in supporting the nation to fight against COVID-19. Radico has contributed rupees 1 crore to the Chief Minister Relief Fund, Uttar Pradesh government. It has also contributed rupees 21 lakhs to District COVID-19 Relief Fund, DM of Rampur. We have been consistently giving sanitizers, masks, rations, bleaching powder, and so many other things to many towns and villages. And today we would like to assure the government that we are with them in the fight of COVID. Today, I'd like to wish all the best to the Indo-American Chamber of Commerce for the launch of this UP chapter. And I'm also privileged to know Mukesh Bahadur Singh for many, many years. Also knowing his capabilities, I'm sure that Indo-American Chamber of Commerce will reach a great height in Uttar Pradesh under the leadership of Mukesh Bahadur Singh. I would like to contribute, I'd like to conclude by saying, in view of what is happening in COVID, जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो. Thank you very much. I wish everybody all the best and Jai Hind. Dr. Lalit Khetan, ladies and gentlemen, and with this few words of wisdom, now it is time that we humbly request our honorable chief guest for this program to share a few words on this occasion. इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री ब्रजेश पाठक जी से, माननीय मंत्री न्याय, विधायी एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उत्तर प्रदेश, कि वे अपने शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें. इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लखनऊ चैप्टर के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके बड़े भाई, नौजवानों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री, और जिनका कि कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान है, आदरणीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, अमेरिकन एम्बेसी के माइकल जी, मुकुल सिंघल जी, श्री मनोज सिंह जी, श्री विनोद कुमार सिंह जी, श्री आलोक रंजन जी, सुश्री कशिश त्यागी जी, डॉक्टर सुनील जोगी जी, सर्वेश अस्थाना जी, एस पाल सिंह जी, और जिनकी वजह से हम सबको यहाँ आने का अवसर मिला, हमारे मित्र आदरणीय मुकेश सिंह जी. इंडो अमेरिकन चैम्बर का लखनऊ से खुलना हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और यह आवश्यक इसलिए है कि दुनिया के पैमाने पर यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो बगैर व्यापार के, बगैर ट्रेड के हम आगे नहीं बढ़ सकते. कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में त्राहि मची थी, लेकिन भारतीय उद्योग व्यवस्था ने, उत्तर प्रदेश ने इसमें अहम योगदान करते हुए अर्थव्यवस्था को तो पटरी पर रखा ही,
और लोगों को रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध कराए। एमएसएमई विभाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। हम आज चैप्टर के लखनऊ के लॉन्चिंग के अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। एमएसई सेक्टर में या बड़े उद्योगों में उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं। जब हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे ग्लोब की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश दुनिया का 6ठा आबादी वाला राज्य है और बगैर उत्तर प्रदेश के हम ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल इंडिया की बात ही नहीं तय कर सकते कि फाइनली हम नहीं पहुंच सकते। हमें लगता है कि माइकल जी मेरी बात को समझ पाएंगे या कोई समझा पाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में दुनिया की 6ठी आबादी रहती है, 6ठा हिस्सा रहता है। तो उत्तर प्रदेश के बगैर हम परिकल्पना नहीं कर सकते कि फुल्ली हम डेवलप्ड हैं या ग्लोबली हम एकदम अवेयर हैं व्यवसाय के बारे में, उद्योग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। तो हमारे सामने दो दिक्कतें हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता मनोज जी ने बताया। ओडीओपी के क्षेत्र में बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। अभी सैमसंग की बहुत बड़ी फैक्ट्री हमारे यहाँ नोएडा में लगी, जो पूरी दुनिया वहां से सैमसंग की स्क्रीन लेगी। लेकिन एक हमारे सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास जो है, हमारे पूर्व वक्ता शायद मनोज जी ही कह रहे थे कि सोलर पावर के बारे में उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कुछ हमें किया जाना है, संभावनाएं अपार है। लेकिन सोलर में अभी हम कुछ कर नहीं पाए। जब तक सोलर प्लेट्स का निर्माण उत्तर प्रदेश में नहीं प्रारंभ हो पाएगा। उसमें मैं मुकेश जी से कहना चाहूंगा कि अभी भी जो सोलर प्लांट्स लगते हैं कि भारत में असेंबल किए जाते हैं। हम जो सोलर प्लेट्स बनाते हैं वो असेंबल की जाती हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण होना चाहिए। उसके लिए आपका चैम्बर अगर कुछ कर पाएगा तो मुझे खुशी होगी। नोट कर लीजिए, सोलर प्लेट्स के निर्माण में आपका चैम्बर क्या भूमिका निभाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा विषय मैं आपको दे के जाता हूं, जो मेरी डिमांड है कि उत्तर प्रदेश राज्य दुनिया का 6ठा हिस्सा होने के बावजूद पूरी दुनिया में जो आईसी है वो केवल चाइना बनाता है। और आईसी आजकल कोई ऐसी मशीन नहीं इलेक्ट्रॉनिक जिसमें आईसी के बगैर काम चल जाए। अभी आप देखते हैं कोरोना ने महामारी के बाद 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन बहुत तेजी के साथ बिके और कई बड़ी कंपनियों ने मर्सिडीज तक ने सप्लाई नहीं दे पाया और 6-6 महीने की बुकिंग है। कारण यह है कि चाइना ने आईसी की सप्लाई रोक दी। जो आईसी लगती है गाड़ियों में या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में, पूरी दुनिया को सप्लाई चाइना करता है। और चाइना से अभी कोरोना महामारी के कारण बहुत अच्छे रिश्ते व्यावसायिक दृष्टि से हमारे नहीं रहे। तो आईसीज के निर्माण के क्षेत्र में आपका चैम्बर क्या भूमिका उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ निभा पाएगा? दो हमारे सब्जेक्ट है, बाकी एमएसएमई के बारे में, अन्य उद्योगों के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में लोग बात करेंगे। लेकिन हमारी दो डिमांड्स है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए आपको जमीन उपलब्ध कराएगी, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी, जितनी एनओसीज है वो हम उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश में निर्माण इकाई, अगर सोलर पावर प्लांट की निर्माण इकाई लग जाए, असेंबलिंग इकाई की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अभी आप एलईडी बल्ब देखते हैं, एलईडी बल्ब जितना भी बनता है उसका 90% हिस्सा चाइना से आता है। और चाइना अगर हमको कहीं झटक दे तो हम कहां जाएंगे? हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि दुनिया के दूसरे देश हमें दे पाए। तो जो एलईडी के बारे में हम चिंता कर सकते हैं, सोलर के बारे में हम चिंता कर सकते हैं कि उसका निर्माण भारत में, उत्तर प्रदेश में हो। उसके लिए हम जमीन देंगे, आवश्यक संसाधन देंगे, जो सब्सिडी होगी वो भी हम देने पर विचार करेंगे। और समय समय पर नीतियां भी अगर संशोधित करनी पड़ी तो हम नीतियों को भी संशोधित करने के लिए तैयार है। आपके साथ करबद्ध ढंग से हम जुड़ना चाहते हैं, जिसको आप कहते हैं ज्वाइन हैंड्स विद। दूसरा सबसे बड़े आईसीज के विषय में, आईसीज की निर्माण इकाई आप उत्तर प्रदेश में डालिए, नोएडा में डालिए, बुंदेलखंड में डालिए, हम जमीन भी उपलब्ध कराएंगे, आवश्यक संसाधन भी। दो के विषय में अगर उत्तर प्रदेश राज्य में आपने बड़ी इकाई स्थापित करा दी, फिर दुनिया के पैमाने पर उत्तर प्रदेश को बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आपके चैम्बर के नाम, इंडो अमेरिकन चैम्बर के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं हमेशा इस बात को हर जगह रखूंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि पहले ही बहुत अधिक वक्त हो चुका है। एक लगातार हमारी एक मीटिंग पहले लगी थी 2 बजे, उसमें बहुत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे अनुमति लेकर जाना चाहूंगा। और आदरणीय सिद्धार्थनाथ जी भी हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन है, इनसे अनुमति लेकर जाना चाहूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ जुटे हैं सब लोग ऑनलाइन भी बात सुन रहे होंगे, तो हमारी रिक्वेस्ट पर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सिर्फ कुछ लम्हे आपके चाहेंगे। मैं आदरणीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से अब अनुरोध करती हूं कि वे अपने शब्दों से हम सभी को प्रेरणा दें। जोरदार तालियां हो जाएं फॉर आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट टुडे, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच में
हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी बैठे हैं, मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी और अमेरिकी दूतावास से दिल्ली से आए हुए हम लोग के बीच में माइकल रोजेंथॉल, other dignitaries from their like economic officers and political specialists. हम लोग के साथ साथ यहाँ पे बैठे हुए हमारे अधिकारीगण, मुकेश जी बैठे हैं, मनोज जी बैठे हैं, सम्मानित आलोक रंजन जी भी हैं, मुकेश सिंह जी जिनका आज एक नई नियुक्ति भी हुई है, उसके लिए मैं आपको let me congratulate you to be the chairman of this chapter. और भी बहुत डिग्निटरीज हैं, काफी लोग हैं जिनको आज एक प्रकार से अवार्ड मिला है, सम्मानित किया गया है। उन सभी का मैं आदर पूर्वक आप सभी का मैं आज स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आज क्योंकि मैं एमएसएमई मंत्री हूं, साथ साथ निवेश का भी काम देखता हूं, मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, because I always felt there is a gap, and the gap is for us in the government to bring a support system which could be from US. We have been using other platforms, and I shared with Mr. Michael, like USISPF and USIBC, they've been very active. But I always felt they've been sitting in Delhi. It's very difficult for a continuous liaison. And if you don't have a continuous liaison with the government, things are difficult to move. But with this chapter being in Lucknow, इससे हम लोग को बहुत सहूलियत मिलेगी, सरकार को बहुत सहूलियत मिलेगी, और सरकार को ही नहीं, आपके यूएस कंपनीज जो हैं, जो निवेशक हैं, उनको भी बहुत सहूलियत मिलती है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना काल के अंदर बहुत सक्सेसफुली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को लेकर आ गए हैं, उनको नोएडा में उनको जमीन मिल गई है। मेरे साथ नेगोशिएशंस पेप्सिको का हुआ था, आज पेप्सिको का 800 करोड़ का उन्होंने निवेश करा है मथुरा के अंदर। अन्य कंपनियों के साथ इसी प्रकार से कुछ निवेश हुआ, कुछ ने जमीन ली है। And we have been a very progressive government and a very active government. And I would use the word a very evolving government. According to किस प्रकार से देश की या ग्लोबल वर्ल्ड की परिस्थितियां बनती जा रही हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल के अंदर कोरोना जब आया, कोरोना के साथ निवेशकों की भी कठिनाई बढ़ी, इंडस्ट्रीज की तो बढ़ती है मगर निवेशकों की भी बढ़ी, जो लेबर क्लास है उसकी भी बढ़ती है। We evolved certain policies. To give an example, in MSME, if today you wish to open MSME unit, 72, that is in 72 hours, हम लोग गवर्नमेंट की एनओसी दे देते हैं कि आप लोग अपना उद्योग चला सकते हैं, you can run your unit, and within 3 years you can submit all your approvals which are required. अब ये एक्सपेडाइट करता है पूरे सिस्टम को। लेबर के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आए, we brought to introduce a labor reform. Now there are only 2 aspects of the labor reform which are now applicable, the rest are null and void. So there are many things which we did during the corona, or you can say COVID-19.
Many policies were relooked into. We looked into how do we compete with China? How do I compete, or UP competes, the government competes with Vietnam? Because we realized the geographical disturbances that were coming in. उस geographical disturbance से उत्तर प्रदेश को लाभ भी लेना है, वो हमारे लिए एक opportunity बन रही थी. अब उस opportunity को लेने के लिए हमारी policy जो है वो कहां से इसका competition होना चाहिए? इंडिया में तो है ही है. Down south there are states just where we compete with, but we had to compete and attract certain companies out of China along with the government of India's policy, which would benefit Uttar Pradesh. So therefore, we decided to give a good example is Samsung Display, which is almost about 5,000 crores. It's a high-end technology. There are only 3 units in the world or for the display. Now, beyond next stage is fab. But Samsung Display, that was an existing unit running unit in China. That was, I learned that they're moving towards Vietnam. Obviously, we went into a discussion. We went with the Korean company. There was a PLI, which was a policy released by the government of India. Based on that PLI, we looked at our incentives and we negotiated. And we brought that mega investment out of China, not which was likely to go to Vietnam, to Uttar Pradesh. So that's the kind of, therefore I said we are just not progressive, we are evolving government. But nevertheless, they are part of the policies that we are continuously doing. But I feel there are many areas where we need to have a continuous dialogue, because we are coming up with the defense corridor, industrial corridor, defense industrial corridor. There's a high-end technology from US which can be brought in the aerospace and defense industry. We are in discussion with many of them. But with your chapter coming in, that will give a continuity towards it, towards our efforts and dialogue. Similarly, there's a lot of apparel which goes from Noida, Greater Noida, which is textile, carpets. These are traditional items. But in order to become, UP becomes a global supply chain because of the geographical disturbances. We engaged PwC as a consultant. PwC has already given a voluminous report to me, to the government, based on each item which UP is actually exporting, comparing with China, where they also have entry. China का भी वहां निर्यात हो रहा है और उत्तर प्रदेश से भी हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश का जो भाग है वो हिस्सा कम है. But that shows that we already have a market. उसको हम कैसे बढ़ावा देंगे, वो रिपोर्ट पूरी की पूरी उस पे फोकस करती है और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं. Now that's an area where Indo-American Chamber of Commerce can help us. I seek that kind of an engagement. We all love seminars, we need, but that's not the way actually work will happen. Exports or imports or technologies will come. That's a meaningful engagement we are looking at. And therefore, I was speaking to Michael, and my suggestion is, Mukesh ji, aapke liye, कि we have invest UP, जो हम लोग ने कोरोना काल में इसको बनाया. We have already engaged invest
India for creating $1 trillion economy in UP. उसका हमने engagement कर दिया है, led by my ministry. Because investment भी निवेश मेरे पास है. So we can get into an MOU with North India office of the US Embassy with Invest UP. We have a meaningful dialogue. हम एक strategic, और ये मेरा मानना है, जो ब्रजेश जी भी कह रहे थे, India and US can discuss any strategic relationship. They will never succeed if US doesn't have a strategic relationship with UP. That's the population that we carry. That's the geographical area we carry. So for India to succeed, we are the backbone. And we are very conscious of that fact that India's any economic growth that has to happen, UP has to contribute for that economic growth. And that is pushing and driving UP and our government under our leader, Yogi Adityanath ji. Therefore, I would say we must get into an MOU, decide the strategic relationship, the items or the areas. Based on that, then we take things forward. So I will leave gentlemen here because I know मेरे अध्यक्ष जी को भी जल्दी जाना है, बहुत उनके ऊपर pressure रहता है. So thank you very much and my many congratulations to all of you for to India in Indo-American Chambers of Commerce and everybody patiently waiting for us to hear us. Basically, it's not been an easy, I'm sure. And कुछ मेरे पत्रकार बंधु भी वहां पे बैठे हुए हैं, मित्र लोग बैठे हुए हैं, वो भी 2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं. तो हो सकता है मुकेश जी का इतना प्रेम होएगा कि वो बैठे हैं. हमारे साथ पॉलिटिशियन के इतना प्रेम नहीं करते, वो हमारे ऊपर स्पीड कर देते हैं. थैंक यू वेरी मच. Sir, I humbly request you to just stay back for one moment. We would like to extend our gratitude to a few personalities who are still present with us, also from the US Embassy. And since we have our banking partner, HDFC Bank, we would also like to invite their Vice President to please join us so that we can extend formally a gratitude on behalf of our entire team. मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, साथ ही ब्रजेश पाठक जी और आदरणीय स्वतंत्र देव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे प्लीज मंच पर आएं. और साथ ही मैं प्लीज इनवाइट जूही भंडारे, Kavleen Chatwal and Travis Coberly to please join us so that we can take this moment and extend our gratitude. First up to our banking partner, HDFC Bank. Let's have a big round of applause, ladies and gentlemen. We would also like to extend our gratitude to our members from the US Embassy, Jui Bhandare. Let's keep the applause going, ladies and gentlemen. Kavleen Chatwal. And Travis Coberly. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for gracing this wonderful event. And once again, we thank our banking partner, HDFC Bank, for all their support throughout the event. Thank you, sir. Thank you. And इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी स्वतंत्र देव सिंह जी से कि वे कुछ शब्द कहें. हमारे बीच में हम सबके लोकप्रिय मंत्री आदरणीय सिद्धार्थ जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी,
हमारे सीनियर वरिष्ठ IAS श्री आलोक जी, हमारे श्री मनोज सिंह जी, श्री माइकल रोजनथाल जी, डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया ऑफिस US एम्बेसी, पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी, श्री सर्वेश अस्थाना जी, सुश्री कशिश त्यागी जी, जिनके कारण आने का सौभाग्य बना, ऐसे श्री मुकेश सिंह जी। मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लखनऊ चैप्टर के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ। अमेरिकी दूतावास के डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया ऑफिस के मिस्टर माइकल, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ललित भसीन जी, नेशनल प्रेसिडेंट श्री पूर्णचंद राव सुरपानिनी, श्री रमन राय, श्री रोहित कोचर, श्री अरुण तथा चैम्बर के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी लोकप्रिय कवियों, गीतकारों, साहित्यकारों एवं इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के काउंसिल मेंबर एवं इस आयोजन के संयोजक श्री मुकेश सिंह जी, मीडिया कर्मियों तथा यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति नीति के साथ उत्तर प्रदेश योगी सरकार औद्योगिकीकरण में क्षेत्रीय संतुलन बनाने को प्रयासरत हैं। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश के पिछड़े अंचलों में निवेश आए, इसके लिए निवेशकों को विशेष छूट देने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि बना रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बुंदेलखंड के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसी बीच कोरोना काल में विशेष रूप से पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बड़ी तादाद में प्रवासी श्रमिक कामगार लौटे, जिन्हें यहीं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध रूप से काम किया जा रहा है। मित्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी उद्योग है। इसके चलते अब सरकार का प्रयास है कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल जैसे क्षेत्रों में भी निवेश को प्रोत्साहित करने का है। मौजूदा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने अब उद्यमियों को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और भी कदम बढ़ाया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की आपदा में जो दुनिया भर में व्यापार कारोबार प्रभावित हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश अपने प्रयास और नीतियों से विदेश निवेश को आकर्षित करता रहा। पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश विदेशी निवेश का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। इस उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री योगी जी की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने 4 वर्षों में के दौरान निवेश बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने हाल ही में राज्यों की औद्योगिक स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें विदेशी निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य उत्तर प्रदेश से पीछे छूटे हैं। कोरोना काल यानी अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है। यह हम सभी प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे दूरदर्शी नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की नींव तैयार हो चुकी है। इस नींव पर नए उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा। मैं पुनः एक बार इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं, विशेषकर मुकेश जी को, तथा इस कार्यक्रम में सफलता के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भी कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। And with these words, to conclude our program today, may I please invite Padma Shri Dr. Sunil Jogi ji to provide a vote of thanks.
आज इंडो अमेरिकन ऑफ कॉमर्स के चैप्टर का, लखनऊ चैप्टर के लॉन्चिंग के इस अवसर पर बड़े लोग उपस्थित हैं। राजनीति के बड़े नाम यहाँ हैं, उद्योग जगत के बड़े नाम हैं, प्रशासन के बड़े नाम हैं और पत्रकार बंधु हैं, कविता के भी बड़े नाम यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मुकेश जी के लिए एक बार सबकी तालियां चाहता हूँ। वो प्रेसिडेंट यहाँ के हैं और सदा लखनऊ को गुलजार बनाए रखने में, उत्सवी बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी, महामारी के बाद भी हम सब सुरक्षित हैं और मुस्कुरा रहे हैं और नई प्रगति की ओर जा रहे हैं। ये एक बड़े संकेत हैं। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ब्रजेश पाठक जी और माइकल साहब, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और धन्यवाद ज्ञापन करने वाले का अधिक बोलने का अधिकार नहीं होता, उसका काम सिर्फ ये होता है कि कार्यक्रम की समापन की सूचना देनी है और अगर हो तो सबको भोजन के लिए आमंत्रित करना है। तो मैं समझता हूं कि आप सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं और कार्यक्रम के समापन की घोषणा है। उसके बाद यहाँ गीत गंगोत्री का कार्यक्रम है। देश के बहुत प्रख्यात कवि यहाँ उपस्थित हैं, माननीय संतोषानंद जी, सोम ठाकुर जी, राजीव जी, रुचि जी, सब, विष्णु सक्सेना जी, गजेंद्र प्रियांशु, बलराम श्रीवास्तव, सब एक से एक अच्छे लोग यहाँ हैं, श्वेता सिंह, सबको सुनकर जरूर जाइएगा और उसके बाद इसका समापन होगा। दूसरा चरण अभी बाकी है। मैं इस चरण में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। So thank you so much, ladies and gentlemen. With this, we conclude the first half of this program. We would like to extend a warm thank you to all our wonderful dignitaries, our honorable guests, for taking out their valuable time just to be a part of this prestigious event. Once again, I'm your host today. My name is Mallika, and I would like to thank you for joining us today and making this event so much a big success. आज का ये कार्यक्रम अभी भी शेष है, बस कुछ ही पलों में गीत गंगोत्री का एक कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ होने जा रहा है। गीत गंगोत्री जिसको यहाँ पर संचालन करने के लिए मैं एक बहुत ही खास शख्सियत से रिक्वेस्ट करूंगी। विष्णु सक्सेना जी यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं अब उनसे अनुरोध करूंगी कि बाकी का कार्यक्रम का संचालन उनके निर्देश में होगा। तो ladies and gentlemen, in just a short while we'll be beginning with a beautiful musical program that is waiting for all of you out here. Thank you so much and have a wonderful day.
हमारे सभी अतिथियों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि वे आगे के स्थानों पर आकर बैठ जाएं, आगे के स्थानों पर आकर विराजमान हो जाएं। गीत गंगोत्री का अब ये कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है, जिसके संचालन के लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अब मंच संभालें और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गीत गंगोत्री के लिए आज यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अतिथियों से मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप सब विराजमान हो जाएं और साथ ही साथ ये आगे के जितने स्थान खाली पड़े हुए हैं, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, ये कार्यक्रम आप ही के लिए है, आप ही के मनोरंजन के लिए है, तो बढ़ चढ़कर इसका आगे बढ़कर हिस्सा लें और इसका आनंद उठाएं। तो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, हमारी हम्बल यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आगे की कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं। Ladies and gentlemen, and now we request you all to kindly be seated. We humbly request you to please join us and be a part of this wonderful program which is about to begin, Geet Gangotri, जिसका संचालन करने के लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर इस कार्यक्रम का कार्यभार संभालें। एक बार आपकी प्यार भरी तालियों के बीच डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वो तालियों की जब तक आवाज नहीं आएगी, इस कार्यक्रम में जान नहीं आएगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जितने कवि हैं, श्री संतोषानंद जी, श्री सोम ठाकुर जी, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो मंच पे आ जाएं, श्री रामेंद्र त्रिपाठी जी, राजीव राज, बलराम श्रीवास्तव, गजेंद्र प्रियांशु, रुचि चतुर्वेदी। एक बार आप लोग तालियां बजाइए और जितने लोग पीछे हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाइए, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ये सारे सोफे आपका इंतजार कर रहे हैं। और श्वेता सिंह, संतोषानंद जी को हम बाद में बुलाएंगे क्योंकि वो मंच पे चढ़ नहीं सकते, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जितने कवि लोग मंच पर आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं। इस सभागार में हास्य और व्यंग्य के चितेरे कवि हमारे छोटे भाई प्रिय सर्वेश अस्थाना बैठे हैं। आज वो दर्शक दीर्घा में वो कभी हमें सुनते नहीं थे, आज हमें सुनाने का मौका मिल रहा है उन्हें। वो दूसरों को सुनाते थे, आज वो खुद सुनेंगे हमें। आज का ये कार्यक्रम किन परिस्थितियों में हो रहा है, उसके लिए मैं 2 मिनट के लिए मुकेश सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ माइक पर कि वो आएं और बता दें, उसके बाद फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। धन्यवाद विष्णु जी। चूंकि ये कार्यक्रम का जो बेसिक उद्देश्य था वो उद्देश्य था इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लखनऊ चैप्टर का लॉन्च, और इस जो ये गीत गंगोत्री का कार्यक्रम है इसको प्लग इन इसलिए किया गया ताकि मैं चूंकि 2 चैम्बर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, पीएचडी चैम्बर्स को और इंडो अमेरिकन को, तो बहुत लंबे समय से ये था कि उत्तर प्रदेश के जो गीतकार है उनका हम छोटा सा सम्मान भी करें, जो हम कर सकते हैं अपनी छोटी सी भूमिका में। तो उसके तहत ये कार्यक्रम रखा गया था। मेजर फोकस इसका लखनऊ चैप्टर का लॉन्च था, इसलिए जो ऑडियंस थी वो फर्स्ट फेज में ज़्यादा थी। इसमें कम ही लोग रहेंगे क्योंकि आपको पता है लॉन्च के लिए भी लोग आए हुए थे। तो मैं अपने जितने सम्मानित कवि हैं वो सभी नोन नेम्स हैं, चाहे वो प्रियांशु हो, रुचि जी, श्वेता जी, त्रिपाठी जी, सब जितने भी लोग हैं, बलराम श्रीवास्तव जी, तो मैं सबको कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जानता हूं, कुछ लोगों को मैंने सुना भी है। सर्वेश भाई और सुनील योगी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में, विष्णु जी खुद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इसकी बड़ी छोटी सी भूमिका यही थी कि ये चैप्टर को हम लोग लॉन्च करें
और ऐसे जो उत्तर प्रदेश के एसेट्स हैं, मैं आप लोगों को एसेट मानता हूं क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। तो आप ये मत देखिए कि ऑडियंस है नहीं है, कम है, क्योंकि फुल हाउस था, आपको पता, आप लोग पेशेंटली बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो चैम्बर की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका मैं सम्मान करता हूं। और एसपी सिंह साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लंबे समय से हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, और मेरे साथ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वो मेरे मार्गदर्शक भी है। तो हम केवल बस ये कहना चाहते हैं कि आप सबका सम्मान कर करके, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आपका सम्मान किया उसके लिए हम खुद चैम्बर की तरफ से अनुग्रहित हैं। और विष्णु जी, मैं चाहूंगा कि छोटा कार्यक्रम हम लोग जल्दी से जल्दी इसको खत्म करेंगे, और चूंकि पर्पस केवल आप लोगों का सम्मान था, कविता पाठ हम लोग लंबा कविता पाठ जो है, कोई बड़ा कार्यक्रम जब करेंगे तो उसमें हम लोग आपको आमंत्रित करेंगे। तो एक एक कविता मैं चाहूंगा कि आप लोग कहे, ताकि जो एक शुभ अवसर है उस पर एक अच्छा संदेश जाता है आप लोगों का। और खुद चैम्बर जो है वो गीतकारों का सम्मान करके कृतज्ञ। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि मुकेश जी ने इशारों में सब कुछ बता दिया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है हमारे कवि साथियों को। मुकेश सिंह जी, आपको बता दूं कि मैं इन सारे कवियों को बताना चाहता हूं कि जहां से बिलोंग करते हैं वो जगह शिव बहादुर सिंह भदौरिया जी की है। तो इनकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं गीतकारों का सम्मान करूं, तो आज एक ऐसा मौका तलाशा। हालांकि इस कार्यक्रम में कवि सम्मेलन की कोई जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक मौका तलाशा। कवियों का बड़ा स्नेह करते हैं, कवियों का बड़ा आदर करते हैं, खासतौर से गीतकारों का। इसलिए उन्होंने इस बार कहा कि सिर्फ गीतकारों को बुलाइए विष्णु जी। तो और उन्होंने माध्यम मुझे रखा। बहुत लंबी टीम थी, बाद में समय और दूसरे कारणों की वजह से उसको बहुत आधा किया गया, छोटा किया गया, और बहुत सारी परेशानियां भी हुई। वो मुकेश जी समझते हैं, मैं समझता हूँ। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अपने सारे कवियों से अनुरोध करूंगा, जैसा मुकेश जी ने कहा है, बहुत संक्षिप्त रखना है। एक एक कविता सुनानी है जो आपकी प्रसिद्ध कविता हो, ज्यादा फैलना नहीं है। तो, तो कुल मिला के एक एक कविता सुनानी है, और हम सब एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे कविता का। और जैसा मुकेश जी ने कहा है, फिर हम लोग बृहद कवि सम्मेलन करेंगे जहां हमको बहुत अच्छी अच्छी अपनी खूब सारी कविताएं सुनानी है। और इस कवि सम्मेलन का जो अच्छी तरह से संचालन करेंगे, मैं गजेंद्र प्रियांशु से अनुरोध करता हूं कि वो संचालन करके और एक एक करके कवियों को आमंत्रित करें, और खुद भी कम बोलें इस माइक से। मैं प्रणाम करता हूं। इस सभागार में हमारे वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश श्रीवास्तव जी भी बैठे, मैं उनका स्वागत करता हूं। वो मेरे रिश्ते में समधी लगते हैं, इसलिए उनको उनका परिचय कराना जरूरी था। और ये मुकेश सिंह जी आपके यहाँ आए भी थे, अखिलेश जी। चलिए, मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का ये लोकार्पण था। इसी तरह आज कवियों का भी प्रथम समझ लीजिए लोकार्पण ही है। इससे पहले कोरोना काल में दूसरी लहर आई तो बहुत सारे लोग परेशान थे, दुखी थे। उन परिस्थितियों से उबर करके अब इन परिस्थितियों में आए। पहला प्रोग्राम भी एक लहर की तरह था, चला गया, लोग कम पड़ गए। अब जितने बचे हैं उतने बढ़िया बचे हैं, कविता सुनने वाले बच्चे हैं। संचालन तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। ये तो सर्वेश जी हमारे बैठे हुए हैं। ये हमको भगवान कसम सुन के बहुत पकाते थे, और आज मिले हैं मौके से, तो मैं चाहता हूं कि वो कसर पूरी हो जाए। एक बार आप जितने लोग हैं तालियां बजा करके। ये बहुत अच्छा है कि बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में गीतों के कार्यक्रम होते हैं, विशुद्ध गीतों के कार्यक्रम जिसमें सिर्फ गीतकार होते हैं। आज हमारी इस गीत पीढ़ी के वरिष्ठ ऋषि तुल्य हमारे संतोषानंद जी, आदरणीय सोम ठाकुर जी, आदरणीय रामेंद्र मोहन जी और विष्णु जी, सब हमसे हमारी पीढ़ी के ये वंशज हैं जो बैठे हुए हैं। हम इनके वंशज हैं और ये हमारे पूर्वज हैं। हम इनको प्रणाम निवेदित करते हैं। इन सबका स्नेह हमको मिलता है। और ये कार्यक्रम थोड़ा सा भी बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने पहले तो इतना कह दिया कि बोलना बहुत कम है। ऐसे क्या, एक बार एक राजनीति में नेताजी से कहा गया कि जो है आपको थोड़ा संक्षिप्त भाषण दीजिए, तो नेताजी का सम्मान हुआ था, तो वो बोले कि आपने जो हमारा ये किया है उसके लिए हम आपका वो करते हैं। तो वो उतना कम भी नहीं। एक बार क्या, एक आदमी
चार आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे, तो एक आदमी आया के बोला कि जो है भाई रास्ता तो हमें बहुत जल्दी है। तो उन चारों ने कहा ज्यादा जल्दी हो तो इसको उतार दें, तुम्हें को ला दे लें। तो इतना इतना जल्दी भी नहीं है, आप तालियां बजा दीजिए और बढ़िया सा कवि सम्मेलन होगा। जितना भी समय आप 1 घंटे 2 घंटे हम लोगों के साथ रहेंगे। हिंदी गीतों में गीत की परंपरा द्विवेदी युग से शुरू हुई थी। लगभग मैथिली शरण गुप्त के गीत थे, निरख सखिए खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नैनी धर्मन भाए। उसके बाद छायावाद में महादेवी ने गीतों को बहुत पुष्ट किया, और उसके बाद बच्चन जी और उसके तुरंत बाद से हमारे आदरणीय सोम ठाकुर जी और ये तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने गीतों की परंपरा को बढ़ाया है। उन्हीं गीतों में से आज ये गंगाजली आपके लिए गीत गंगोत्री के नाम से आदरणीय मुकेश बहादुर सिंह जी के सौजन्य से प्रस्तुत है। तो ये सुंदर सा कार्यक्रम होगा। मैं माँ वागीश्वरी के प्रार्थना के लिए आदरणीय रुचि चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करूंगा। वाएं आगरा से पधारी हैं, सुंदर सी माँ की वंदना करें और सबका जैसे कि एक एक गीत होना है तो आप सुने। एक बार आप तालियां बजा करके आदरणीय रुचि जी को आमंत्रित करें। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ और पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, आदरणीय मुकेश जी का, कि गीत गंगोत्री में आज सारे गीत के उन सभी सुमन को यहाँ पर शामिल किया गया है। और मेरा मानना है कि अमेरिका तक इस गीत गंगोत्री के माध्यम से गीतों की ये कलकल वहां तक पहुंचेगी। और मैं माँ के श्री चरणों में शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। मंच को पुनः प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी और यहाँ अभय भैया भी सुन रहे हैं। आदरणीय की उपस्थिति है, मातृशक्ति के रूप में आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। माँ के चरणों में मेरी वंदना सीधे सीधे समर्पित करती हूँ। कमलासिनी सुनो यह है, कमलासिनी सुनो यह है, मन भावना हमारी। कमलासिनी सुनो यह है, मन भावना हमारी। स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमलासिनी सुनो यह है, मन भावना हमारी। स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमलासिनी सुनो यह है, कल्याण गीत लिख दे ये लेखनी जगत के। वाणी सुनाए जिनको वीणा में स्वर तहत के। शब्दों में आप आए, शब्दों में आप आए, हो साधना हमारी। स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमलासिनी सुनो यह है, मन भावना हमारी। स्वीकार आज कर लो नीराजना हमारी। कमलासिनी सुंदर वंदना आपने सुनी। वंदना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हम सब कवि हैं, आदरणीय संतोषानंद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आप अच्छा तो आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए बढ़िया से। हाँ ठीक है। आइए, गीतों के विषय में किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। इस मिठास को जिन्होंने बहुत
सलीके से अपने कंठ में संजोया है। ऐसे आदरणीय बलराम श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम सबके अग्रज हैं। और सुंदर, जब मैंने कविता लिखना शुरू किया था तो शायद बहुत सारे कवि सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति होती थी, और उनके तमाम ऐसे मुक्तक थे, तमाम ऐसे गीत हैं जो आज भी मुझे स्मृत हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि उन्हें जो आध्यात्मिक प्रतीकों को लेकर के गीतों की संरचना की है, उनमें से एक गीत का आदेश है, तो आदरणीय बलराम श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप तालियां बजा करके उन्हें बुलाएं। कविता के सरस्वत मंच को प्रणाम करता हूं। एक दो मुक्तक और एक छोटा सा गीत सुनिए। हर जला दीप है आरती तो नहीं, हर जला दीप है आरती तो नहीं, हर कोई पार्थ का सारथी तो नहीं, हर कोई पार्थ का सारथी तो नहीं। राष्ट्र की अस्मिता जिसको प्यारी नहीं, राष्ट्र की अस्मिता जिसको प्यारी नहीं, वह कोई और है भारती तो नहीं, वह कोई और है भारती तो नहीं। चार पंक्तियां और देता हूं कि प्राण पर देह का आवरण जिंदगी, प्राण पर देह का आवरण जिंदगी, देह के ग्रंथ का व्याकरण जिंदगी, देह के ग्रंथ का व्याकरण जिंदगी। रावणी शक्ति जब संत बनकर चली, रावणी शक्ति जब संत बनकर चली, तो लगा जानकी का हरण जिंदगी, तो लगा जानकी का हरण जिंदगी। चार पंक्तियां और देता हूं कि मन विनय पत्र का तन है दोहावली, मन विनय पत्र का तन है दोहावली, लो समर्पित तुम्हें शब्द भावांजलि, लो समर्पित तुम्हें शब्द भावांजलि। ज्ञान के दीप को जिसने मानस किया, ज्ञान के दीप को जिसने मानस किया, प्रेरणा हो गई एक रत्नावली, प्रेरणा हो गई एक रत्नावली। और एक गीत के दो बंद आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। तुम हमारी जिंदगी को प्यार दे पाओ तो देना, तुम हमारी जिंदगी को प्यार दे पाओ तो देना, मैं तुम्हें अपने सभी मधुमास देना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने सभी मधुमास देना चाहता हूं। तुम हमारी जिंदगी को प्रेम का प्रतिमान आया, प्रेम का प्रतिमान आया, साथ मेरा नाम आया, साथ मेरा नाम आया, भावना के डाकिए से संदली पैगाम आया, भावना के डाकिए से संदली पैगाम आया। दृष्टि सुर सरिता में कोई, दृष्टि सुर सरिता में मुझको तृप्ति दे पाओ तो देना, दृष्टि सुर सरिता में मुझको तृप्ति दे पाओ तो देना, अंक में अपने तुम्हें प्रतिवास देना चाहता हूं, अंक में अपने तुम्हें प्रतिवास देना चाहता हूं। तुम हमारी जिंदगी को प्यार दे पाओ तो देना, मैं तुम्हें अपने सभी
मधुमास देना चाहता हूँ। गंध के संबंध पाकर मन नयन खिलने लगे, गंध के संबंध पाकर मन नयन खिलने लगे। चाह ले मकरंद की ये कांत में मिलने लगे, चाह ले मकरंद की ये कांत में मिलने लगे। जेठ की तपती धरा पर, जेठ की तपती धरा पर पूस बन पाओ तो बनना, जेठ की तपती धरा पर पूस बन पाओ तो बनना। मैं तुम्हें अपने सभी विश्वास देना चाहता हूँ। तुम हमारी जिंदगी को प्यार दे पाओ तो देना, मैं तुम्हें अपने सभी मधुमास देना चाहता हूँ। और गीत का अंतिम बंद निवेदित करता हूँ। व्यंजना की झोलियों से, व्यंजना की झोलियों से गीत को मैं बांटता हूँ, व्यंजना की झोलियों से गीत को मैं बांटता हूँ। और अपनी राह का मैं हर कुहासा छांटता हूँ, और अपनी राह का मैं हर कुहासा छांटता हूँ। शब्द पथ के कंटकों में, शब्द पथ के कंटकों में साथ दे पाओ तो देना, शब्द पथ के कंटकों में साथ दे पाओ तो देना। मैं तुम्हें अपने सभी एहसास देना चाहता हूँ। तुम हमारी जिंदगी को प्यार दे पाओ तो देना, मैं तुम्हें अपने सभी मधुमास देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें, एक लोग पढ़ ले फिर आप। मैं तुम्हें अपने सभी मधुमास देना चाहता हूँ। गीत विधा ऐसी है, देखिए दुनिया में जितने सारे भाव हैं वो आदिकाल से अब तक हैं। संस्कृत के आचार्यों ने जो काव्य लिखा, जो भाव उन्होंने तब लिखे वही आज भी लिखे जा रहे हैं, बस कहने का जो ढंग होता है वही कविता होती है। कबीर दास जी ने बड़ा एक अच्छा दोहा लिखा है क्या कि लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत सारे लुटेरे हैं, मोह माया माया जंजाल है। तो कैसे ईश्वर को पाया जा सकता है? महादेवी जी छायावाद में आके कहती हैं, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना जाग तुझको दूर जाना, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। ये जो संसार है ये मोम का बंधन है। कहने का ढंग है। बस एक शायर बड़ा अच्छा लिखता है, मृत्यु पर एक शेर लिखता है कि क्या था कि उम्र भर पैदल चले, कंधे से पहुंचे घाट तक, चंद कदमों के लिए एहसान दुनिया का लिया। अब वहीं अभय सिंह निर्भीक हमारे वीर रस के बड़े कवि है, बैठे हुए हैं उधर पीछे। ऐसे तेवर का आदमी था, वो बोला कि जीते जी न मेरा कुछ उखाड़ पाया कोई, मरे भी तो चार पे सवार हुए। तो बस तालियां बजा दीजिए। देखिए क्या है बढ़िया है मतलब सब कुछ वही है, बस आपका कहन बदल जाता है। तो आइए गौरव, देखिए हमारे यहाँ तो गीतों में क्या है, गालियां तक गीतों में दी जाती थी। हमारा अवधि क्षेत्र जो अवध का क्षेत्र है, यहाँ गालियां भी गीतों में दी जाती थी, इसीलिए इतनी बिल्कुल दी जाती थी। विनम्रता है। अब जैसे वो लिखते हैं गोस्वामी जी, महिष खाए कर मदिरा पाना, गर्जा क्या कुंभकर्ण बलवाना। फिर वो जाके पूछता है तात क्या हुआ, तो तात वात थोड़े कहा होगा, वो कहा होगा कहाँ है, तो बोले होंगे कि दो लौंडे आए बहुत परेशान किए। तो कुंभकर्ण ने होगा अब्बे भैया जा रहे हैं, बताई थे अब्बे। तो हमारी अवधि जो है वो मिठास वाली अवधि है, तो इसलिए इसका आनंद अपना अलग है। तो गोरखपुर से हमारे बीच में आदरणीय श्वेता सिंह जी पधारी हैं, जो रहती तो खैर यहाँ नहीं है, शायद उनका कहीं बाहर से आवागमन होता है, लेकिन वो गोरखपुर की निवासिनी है और इस सुंदर सी कविता और गीत के लिए प्रस्तुत हैं। आदरणीय संतोषानंद जी हमको बड़ी तेजी से देख रहे हैं।
और हम भी उनको देख रहे हैं, आप तालियां बजा दीजिए। आइए। मां शारदे को नमन करती हूँ। मंच पर बैठे प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करती हूँ और आप सभी ने इस नन्ही सी कलम को जो स्नेह सम्मान दिया है उसकी मैं तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, स्वीकार कीजिए। एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, बहुत सारे युवा साथी बैठे हुए हैं। यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है। यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है। मोहब्बत एक समंदर है, न कोशिश तैरने की कर, न कोशिश तैरने की कर। मोहब्बत एक समंदर है, जो इसमें डूब जाता है वही उस पार होता है। जो इसमें डूब जाता है वही उस पार होता है। और मुझे एक गीत के लिए आदेशित किया गया, मैं सीधा ही गीत पर आती हूँ। गीत की भूमिका नहीं बनाऊंगी, मैं सीधा ही गीत सुनाती हूँ आप सभी को। जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर, जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर, बात दिल की उसी को बता ना सके, बात दिल की उसी को बता ना सके। फूल लाए गुलाबों के जिसके लिए, फूल लाए गुलाबों के जिसके लिए, पास आया तो उसको थमा ना सके। जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर, सोच कर मैं गई आज सब बोल दूं, राज दिल के सभी सामने खोल दूं। पास अपने बिठा सांस के सुर मिला, इश्क की खुशबुएं सांस में घोल दूं। लाज दीवार कर दी खड़ी मौन की, लाज दीवार कर दी खड़ी मौन की। लब वो दीवार मेरे गिरा ना सके, जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर। और जिसके मैंने ख्वाब देखे वो कैसा था, अगले बंद में ये सुनिए। ना वो मजनू न रांझा न फरहाद है, पर मेरी चाहतों का वो अनुवाद है। ना वो मजनू न रांझा न फरहाद है, पर मेरी चाहतों का वो अनुवाद है। हसरतों ने जतन से बनाया जिसे, ख्वाब के उस महल की वो बुनियाद है। ख्वाब में खूब उसके गले हम मिले, ख्वाब में खूब उसके गले हम मिले। सामने हाथ तक हम मिला ना सके, सामने हाथ
सके, जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सामने हाथ हम मिला ना सके, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, वीडियो सामने है तो कुछ नहीं, वीडियो बना के रख लो, रात में स्वप्न आएंगे, ख्वाब आएंगे, बुरे बुरे भी आ सकते नहीं। अब जब सामने है तो सामने सुनना चाहिए आदमी को। अब वीडियो बना रहे हो, चलिए एक बार आप तालियां बढ़िया से बजा दीजिए और हम अब बढ़िया सा और करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे लिए गर्व की बात है, आदरणीय संतोषानंद जी, जिनकी उम्र बहुत है, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो दिल्ली से यहाँ तक की यात्रा करके आए हैं आदरणीय विष्णु जी के निवेदन पर। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और लगातार मुझे लगता है 2-2.5 घंटे से वो बैठे हुए हैं। और सामान्य व्यक्ति को बैठना, मैं खुद 6-7 बार उठ के बाहर आया गया हूँ, लेकिन वो जब से वो आए तब से उसी व्हील चेयर पर बैठे हैं, ये बड़ी बात है। मैं आपको क्या बताऊंगा उनके बारे में, सब जानते हैं, रोटी कपड़ा मकान, क्रांति, न जाने कितने सारी फिल्मों में गाने उनके हैं। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, ये गाना बचपन में मैं भी बहुत सुनता था, गाता था, पर ये नहीं मालूम था कि इन्होंने लिखा। एक दिन मैं अपनी बच्ची को लेके गया था, बाराबंकी में जीआईसी में प्रोग्राम था, तो इन्होंने गाने गाए संतोषानंद जी ने। तो हमारी बड़ी बेटी है 7-8 साल की थी तब, तो बोली कि पापा ये तो जो है फिल्मों के गाना गा रहे हैं, इनको क्यों बुला लिया कवि सम्मेलन में। तो इतनी लोकप्रियता की छोटे छोटे बच्चे तक रटे हुए हैं जिनके गीत। ऐसे हमारे संतोषानंद जी हमारे बीच में, आई पुरवा सुहानी आई रे, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर लेगा, न जाने कितने सारे गाने हैं उनके। एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं और हमारे आदरणीय संतोषानंद जी को आमंत्रित करें काव्य पाठ के लिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और अच्छा है कुर्सियां डाल देंगी, कुर्सियां ज्यादा हैं, आदमी कम है। ये मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मेरे लिए वैसे भी ठीक नहीं। तो मैं 12 बजे से बैठा हुआ, मैं समझा कविता पाठ के लिए जाना है, गीतकार सम्मेलन समझा था। विष्णु सक्सेना ने 2-3 बार, हमारी बिरादरी है साहब, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने जैसा कहा मैंने मान लिया। मैं आ गया, अब 12 बजे से बैठा हूँ, आधी बाजू की कमीज पहन रखी है, मेरे 12 ही बज गए, बुखार हो गया पूरी तरह से और गला बैठ गया है, बोलने के लायक नहीं हूँ, लेकिन नालायक भी नहीं हूँ। कुछ ना कुछ जब आया हूँ तो सुना के जाऊंगा आज। मतलब निवेश की बात हुई, मैं एक एक भाषण को मैंने ढंग से सुना और कोशिश की कि जो विषय मेरा नहीं है उस विषय में थोड़ा बहुत जान पाऊं, तो जानने की कोशिश की। एक चीज में तो हम निवेश करते आए हैं, अब से नहीं, मेरा ख्याल है 68 साल हो गए इस गीत के क्षेत्र में हमने निवेश किया है। बस ये है हमारा जो, और गीत जैसे बन पाए आपके सामने है, मुझसे ज्यादा आपको याद है। मैं परंपरा निभा रहा हूँ, विष्णु, गजेंद्र, प्रियांशु बहुत प्रिय है मेरा। मैं वाकई में हर गीतकार को बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ सोम ठाकुर बैठे हुए, हम दोनों ने तो जिंदगी लगभग साथ साथ प्रारंभ की थी, कितनी जगह घूमे, कितने गीत लिखे, सुनाए, सुने। हम लोग हमेशा अच्छी चीज को दाद देते रहे और देना चाहिए, और अपनी नई पीढ़ी को प्यार करना चाहिए। मैं आज भी जो नए गीतकार हैं इनसे कुछ सीखता हूँ, इनसे सीखने की कला जो इनके अंदर है। अब हमारे जमाने की बात और आज की बात
उसमें अपने अनुभव को जोड़ के नई पीढ़ी से मैं प्रेरणा लेता हूँ, तब गीत लिखता हूँ। तो ये होना भी चाहिए, हमको अपनी नई पीढ़ी को प्यार करना चाहिए। वो ज्यादा अच्छी चीजें देख रही है, ज्यादा अच्छा सोच है उसके पास। तो अब आपके साथ हूँ मैं परंपरा तो निभानी पड़ेगी, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन भैया ऐसा है कि जिसे आदत पड़ जाती है तालियों की, और आप लोग जो है थालियों से आके बैठे हुए हैं, तो इसलिए जरा कमजोर मत करने दो। कवियों को आप कमजोर कर रहे हैं, उसकी लाइनों में डांट दो। उसके का तो सबसे बड़ी सेहत है ये, अगर नहीं मिलेगी तो मर जाएगा वो, वाकई कह रहा हूँ। तो अब हमको अगर ये डांट नहीं मिलती रहती तो क्या हम इतने दिन चल पाते हैं? नहीं चल पाते। हमारा ये ऑक्सीजन है, आप लोग हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हो। हमसे आपसे हमको ऑक्सीजन मिलती है सबको, तो आप देते रहिए। मैं फिल्मों में जाकर भी मैंने मंच नहीं छोड़ा, साहित्य नहीं छोड़ा, तो उसका ये परिणाम है कि आप लोग मुझे प्यार देते रहे, मैं आपको गीत देता रहा। यही तो हो सकता था। हाँ तो स्वागत कि तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ। तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ। आखिरी वक्त है इम्तिहान देने आया हूँ। आखिरी वक्त है इम्तिहान देने आया हूँ। एक गजल सुनाई देता हूँ, मेरे कपी आ रही है बहुत ज्यादा। जो प्यार कर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, दिल में उतर गई वो लोग और थे, दिल में उतर गई वो लोग और थे, जो प्यार कर गई। लाइन देख रहा, गुलशन के फूल फूल पर शबनम की बूंद से, गुलशन के फूल फूल पर शबनम की बूंद से हंस कर बिखर गई वो लोग और थे, हंस कर बिखर गई। एक एक से डांट लूंगा, नहीं लूंगा तो आप खुद देंगे। जरा शेर सुनो। स्वागत। मरते रहेंगे हम पे वो जीने की चाह में, मरते रहेंगे हम पे वो जीने की चाह में, कहकर मुकर गए वो लोग और थे, कहकर मुकर गए। वो हुस्न के गुरूर में पर्दा किए रहे, वो हुस्न के गुरूर में पर्दा किए रहे, बेमौत मर गए वो लोग और थे,
वो लोग और थे जो प्यार कर गए। मक्ता है इसका। हाथों में हाथ बांध के संतोष रह गया। आहा आहा। हाथों में हाथ बांध के संतोष रह गया। कुछ कर गुजर गई। आहा और थे आहा आहा। जो प्यार कर गई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक एक, बहुत- एक दादा वो हाँ वो तो रह गया तो ये उसका क्या है, खांसी गला? एक बंद ही नहीं, हम सुना, सुनाएंगे एक आप। बंद ही सुना दीजिए। वाह वाह, आपकी बात तो जरूर भरेगी हम। हाँ, चिंता मत करो। और कोई भरे या नहीं भरे, मैं भर के जाऊंगा। स्वागत। आजा, हाँ आगे आगे आजा मेरे पास। आगे आगे। ये सारे प्रिय है मेरे। मैं ये हाँ सुना रहा हूँ। स्वागत। प्यार का नगमा ये सुना दूं? हाँ हाँ, एक प्यार का नगमा है। कौन, सर्वेश बोल रहा है क्या? हाँ 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 हाँ। हाँ, लाइट में आ रहा है तो। आज तो हमसे आगे बैठे हुए थे नेताओं के उसमें, और वो नेताओं का नेता दिखाई दे रहा था जिसकी हमने भूमिकाएं लिखी, सुनील जोगी। आज हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहा था। हाय हाय नेता, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। देखो भाई, गला नहीं चल रहा है मेरा, आपके लिए मैं सुना रहा हूँ। स्वागत। आप जैसा भी है स्वीकार लेना, और ये मुझे बता देना कि मैं आया हूँ। मैं मुझे मत बताना, लोगों को बता देना कि मैं आया था। स्वागत। असल में मुझे पता नहीं था इतनी देर बैठना पड़ेगा ठंड में, और मैं आधी बाजू की पहनाया, मैं समझा जवान हूँ अभी तक। धोखा और हो दिल गया। से तो हूँ। साथ देता रहिए। आगे आगे आगे। गाता रहिए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ।
आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, आकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती, रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। दो बार दादा से सुना रहे जो फिल्म में नहीं है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, घर फूंक दिया हमने, घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। देखो भाई, अब मैं आखिरी पढ़ रहा हूं और इस पर आप सब ने सवेश स्वर में इसको नहीं गाया तो मेरा आराया बेकार है। सही है? आप जो है तुम साथ न दो मेरा, सॉरी, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, गाओ मेरे साथ, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ऐसी वाणी जिससे सदियां गुंजायमान होती हैं आपने सुनी आदरणीय संतोषानंद जी की आवाज में। उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है कि वो बहुत देर तक आपके बीच रहे, लेकिन जितना उन्होंने आशीर्वाद दिया उसके लिए एक बार पूरे सभागार की तरफ से मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय संतोषानंद जी का मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और इसी क्रम में जो पीढ़ी आदरणीय संतोषानंद जी से चलते चलते हम तक आई, हमारे ही पीढ़ी में आदरणीय राजीव राज जी बैठे हुए हैं इटावा में। वो शायद विज्ञान के लेक्चरर, विज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन विज्ञान पढ़ाने वाला व्यक्ति भी कितना संवेदनशील गीतकार हो सकता है, इसकी वानगी आपको राजीव राज जी के स्वरों में मिलेगी। हमारे बहुत परम प्रिय मित्र हैं। आगे जी विज्ञान
के प्रोफेसर थे। आगे जी ने एक पूरे युग का परिवर्तन किया, जिसको हिंदी कविता में प्रयोगवाद कहते हैं। तो विज्ञान का व्यक्ति जब कविता लिखेगा तो वो भी उसमें प्रयोग ही करेगा। तो ऐसे प्रयोगों और नई रचना धर्मिता, नए सुरों को लेकर के राजीव राज जी हमारे बीच में इटावा से उपस्थित हैं। आप एक बार तालियों से उनका अभिवादन करें। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, आदरणीय राजीव जी। सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है। श्रद्धेय संतोषानंद जी ने जिस संवेदना के गीत को पढ़ दिया, हम सब भावुक हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, उसके बाद पढ़ना मुश्किल होता है। बहरहाल गीत की जमीन तैयार है, मैं कुछ पंक्तियां रखता हूं और उसके बाद एक गीत। सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, 4-6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है। सिर्फ एक फूल के मानिंद जिंदगानी है, 4-6 रोज से ज्यादा नहीं कहानी है। गीत मकरंद है, महकेंगे हमेशा यारो। गीत मकरंद है, महकेंगे हमेशा यारो। गीत मकरंद है, महकेंगे हमेशा यारो। सांस की पंखुरी तो सूख के झर जानी है, सांस की पंखुरी तो सूख के झर जानी है। भले बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की कुछ खास विशेषताएं हैं, और उसमें एक तो ये कि हम लोग जिस परिवेश में बड़े हुए, वहां ये कहा जाता था कि जब आप सरस्वती की साधना करेंगे और सरस्वती के लोक में जाएंगे तो लक्ष्मी से दूर रहेंगे। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि लक्ष्मी लोक के किसी खास व्यक्ति ने सरस्वती लोक के लोगों को सम्मानित किया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तो ये समन्वय जो बना के चल रहा है वो निश्चित तौर पर प्रणम्य है। उनकी पूरी टीम, वो मनोभावना, जब इस तरह के कार्यक्रम की योजना बनी। मैं पंक्तियां रखता हूं कि पीर कुछ भी नहीं है, प्राण का खिलौना है। आहा। पीर कुछ भी नहीं है, प्राण का खिलौना है। अश्क शबनम है, नई भोर का बिछौना है। अश्क शबनम है, नई भोर का बिछौना है। जिंदगी के हर एक पल को जियो जी भर के। जिंदगी 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 के हर एक पल को जियो जी भर के। बाद जीवन के जो होना है सो तो होना है। बाद जीवन के जो होना है सो तो होना है। और इसी हौसले के साथ हमें जीवन का पल पल जीना है। अंतिम 4 पंक्तियां और उसके बाद गीत के 2 एक बंद। स्वागत। कि बूंद हूं और समुंदर से जंग जारी है। आहा। बूंद हूं और समुंदर से जंग जारी है। मौत की धमकियों से जिंदगी नहारी है। बूंद हूं और समुंदर से जंग जारी है। मौत की धमकियों से जिंदगी नहारी है। हौसला कम न कभी हो, यही दुआ करना। हौसला कम न कभी हो, यही दुआ करना। एक दीपक ये कई आंधियों पे भारी है। एक दीपक ये कई आंधियों पे भारी है। एक वर्तमान समय में हिंदी कवि सम्मेलन में गीत के सबसे प्रथम पुरुष से लेकर और इस समय जो पीढ़ी है उसमें जो आगे पंक्ति में चल रहा है ध्वज लेकर, ऐसे गजेंद्र तक मैं आज सबको अपने मंच पर पाता हूं। तो इस विशेष कार्यक्रम की दूसरी विशेषता ये है, मैं एक गीत के कुछ बंद रख देता हूं। स्वागत है भैया। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, जहां औद्योगिक घराने के लोगों में चर्चा मैं सुन रहा था, और ऐसी व्यस्ततम जिंदगी में
जब खुद के लिए 2 पल या पल निकालना मुश्किल होता हो, ये कवि सम्मेलन किया गया है। मैं यहीं से एक बात उठाता हूं, और ये कि जब कभी ये लगेगा ये सब काम क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि जीवन की तलाश है। हम पहले दिन से, चैतन्य होने के पहले दिन से लगातार जीवन को खोजते हुए चल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जीवन कहीं आगे और आगे निकलता चला जा रहा है। जब कभी हम एकांत में बैठकर सोचते हैं तो ये लगता है कि जीवन तो जो पीछे गुजर गया उसमें था। सच क्या है? अनुभूतियों का एक गीत आपके बीच रखता हूं। जब कभी यादों के हिंडोले में आप बैठेंगे तो ऐसा ही कुछ महसूस करेंगे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूं, यादों में आपको ले चलता हूं और गीत रखता हूं। स्वागत। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान। न जाने कितना चल आए, मुड़े पीछे तो घबराए। कहाँ कब छूट गए अपने, छल रहे मायावी सपने। कहाँ कब छूट गए अपने, छल रहे मायावी सपने। बुझे मन को थके तन को, थके तन को बुझे मन को। छुअन पछुआसी दीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे। वाह। झीनी झीनी रे। और इन्हीं झीनी झीनी यादों की पहली खिड़की खोलता हूं। बचपन का वो दृश्य जब हम बहुत छोटे थे, हमारे पास आजकल के बच्चों की तरह महंगे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने नहीं थे, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था। हमने क्या खेल खेले हैं मुकेश जी, शायद आपको याद आ जाए। जो बुजुर्ग बैठे हैं वो निश्चित तौर पर इस बात की तस्दीक करेंगे। मैं कुछ खेल आपके साथ रखता हूं। हवा में उड़ता पंख सफेद, देख कर होड़ पकड़ने की। हवा में उड़ता पंख सफेद, देख कर होड़ पकड़ने की। वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने में, साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने में। हार जाने पर गढ़ना रोज कहानी नई पिछड़ने की। वो विद्या रानी की सौगंध, हृदय को छू न सके छल छन। वो विद्या रानी की सौगंध, हृदय को छू न सके छल छन। लड़कपन की वो छुटपन की, वो छुटपन की लड़कपन की। मस्तियां किसने छीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। और एक कदम आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था के बाद उम्र का वो पड़ाव जिसे पढ़े लिखे लोग किशोरावस्था कहते हैं। मैं केवल एक पंक्ति में अगर परिभाषित करना चाहूं तो इतना कहूंगा कि उम्र जब पहली बार ये महसूस हुआ था कि मैं बेटा हूं या बेटी। उससे पहले सब बच्चे होते हैं। वहां से कुछ बिंब लाया हूं। पता नहीं रहा बारात कहाँ जाई, आई की जाई। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर। छुट्टियों में जाकर ननिहाल, आम की बगिया में दिन भर। खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा, इकड़ दुक्कड़ मिलकर। खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा, इकड़ दुक्कड़ मिलकर। न जाने बचकाना कब लगने लगा, हमें कुछ पता नहीं। न जाने बचकाना कब लगने लगा, हमें कुछ पता नहीं। अचानक उपजा था संकोच स्वयं के लड़का होने पर। एक लड़की थी टोली में, एक लड़की थी टोली में। घुली मिसरी थी बोली में, एक लड़की थी टोली में। घुली मिसरी थी बोली में। मखमली रूप गुनगुनी धूप, गुनगुनी धूप मखमली रूप। हंसी ज्यों झरती चीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे।
तो मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम। सबसे खतरनाक वाला दौर यौवनावस्था में। मोहल्ले भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम। जुरे तो कलरवमय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम। जुरे तो कलरवमय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम। जुरे तो कलरवमय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम। गांव भर में क्या ताजा घटा, कुएं पर चर्चा करने को। काटती थी कैसे दोपहर, सरकती इंच इंच जब घाम। बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार। बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार। कहाँ है आज गजब अंदाज, गजब अंदाज। कहाँ है आज, कहाँ है आज गजब अंदाज। गुजरिया मस्त महीनी रे, यादें झीनी रे, झीनी रे, झीनी रे। यादें झीनी रे, झीनी झीनी रे। ये विज्ञान के अध्यापक हैं और टायर चलाने से लेके क्या था, वो पतंग काटने से लेके और गिल्ली डंडा तक, और सब में इनका जो है, इनका आप चरित्र देख रहे थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे बचपन से ही, इससे मतलब लग रहा है। तो प्रेम और सौहार्द के आपने गीत सुने। अब आपको मैं गणित के प्रोफेसर से मिलवाता हूं, और इतने बड़ी बात नहीं, गणित के प्रोफेसर वो भी आगरा से। बड़ी बात ये है, एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन रुचि चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो आए और अपने गीत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रुचि। पुनः प्रणाम करती हूँ पावन मंच को। और जैसा कि मुझे आदेश बहुत संक्षिप्त में लेकिन अपने मेरे विषय के लिए बताया है, तो मैं गणित विषय से जोड़ते हुए वो पंक्तियां जरूर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, और गीत गंगोत्री को समर्पित करते हुए वहीं से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। जो श्रेष्ठ है वो आप सभी तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो। मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। और सीधे सीधे अपने गीत पर आती हूँ, उस गीत को जिसको परम श्रद्धेय सोम ठाकुर जी, आदरणीय रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी और आदरणीय विष्णु सक्सेना जी का बड़ा आशीर्वाद मिला है। सीधे सीधे वो गीत समर्पित करती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी। मेरे गीत भी याद आने लगेंगे। कभी आसमां को, कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, तो बादल कथाएं
सुनाने आहा, लगेंगे। वाह, वाह। कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम तो बादल कथाएं सुनाने लगेंगे। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, भुला दो भले प्रेम मेरा सदा को, मगर याद मेरी भुलाओगे कैसे। भुला दो भले प्रेम मेरा सदा को, मगर याद मेरी भुलाओगे कैसे। भले इस चमन में नए फूल होंगे, वही खुशबुएं फिर से लाओगे कैसे। वही खुशबुएं फिर से लाओगे कैसे। कभी गम लिए सर, कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो। कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो, तो पत्थर भी गजलें सुनाने लगेंगे। कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो, तो पत्थर भी गजलें सुनाने लगेंगे। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी। अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ। अधर पर बसी है वही बांसुरी जो तुम्हारी मधुर तान सुन कर बजी है। ये बिंदिया तुम्ही ने सजाई है माथे, अधर पर तुम्हारी लाली सजी है। गणित जिंदगी का, गणित जिंदगी का जो बिगाड़ेगी सांसें, गणित जिंदगी का जो बिगाड़ेगी सांसें, अधर भी पगाड़े सुनाने लगेंगे। गणित जिंदगी का जो बिगाड़ेगी सांसें, अधर भी पगाड़े सुनाने लगेंगे। कभी रुचि चतुर्वेदी हमारे मंचों की इतनी अच्छी कवित्री हैं, इतनी सिद्ध कवित्री हैं, जिन्होंने कम समय में बहुत स्थापित भी हो गई और बहुत अच्छा नाम भी किया। मैं रुचि को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बार रुचि के सम्मान में तालियां बजाइए। राजीव राज ने बहुत बढ़िया गीत पढ़ा, शानदार। हमारे ये 4-5 बच्चे जो हैं इस महफिल में रौनक लाए हुए हैं। अगर आप न हो तो जिंदगी नहीं मिले। आप बहुत बढ़िया सुना। और फिर मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है, हर कवि की कविता याद है आपको। मंच हमारे, अभी मैंने देखा कि हमारी एक बहुत अच्छी कवित्री है यहाँ लखनऊ की, शिखा श्रीवास्तव, वो भी यहाँ बैठी हुई है। और अभय निर्भीक यहाँ हैं। सर्वेश अस्थाना तो बहुत पहले से हैं, वो तो 12 बजे से यहाँ बैठे हैं। तो और खैर, हम इन सब का स्वागत करते हैं। हमारा धवल बैठा है, ये पिताजी के प्रोटोकॉल में है और अच्छा क्रिएटर है आजकल, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है इसके दिमाग में, हमारा भतीजा है। चलिए, अब जो अब तक संचालन कर रहे थे इस कवि सम्मेलन का, मैं गजेंद्र प्रियांशु को आमंत्रित करता हूँ। और क्योंकि वो संचालन में काफी बोल लिए हैं, इसलिए अनुरोध है कि वो सीधे सीधे अपनी कविता पाठ करें। आइए, एक बार तालियां बजाइए। बेइज्जती नहीं है, ये वक्त की नजाकत है। इंडो अमेरिकन बेइज्जती है या नहीं? हम भूल गए, इतना मजा आ गया इस बात में कि हमको कविता भूल गए। तो बहुत अच्छी कविताएं सुने थे। हमारे बड़े भाई राजीव जी ने बहुत अच्छा पढ़ा और सबने अच्छे पढ़ा है।
4 पंक्तियां मैं पढ़ के और एक गीत के 2 बंद पढ़ देता हूं जल्दी जल्दी में, सब समय कम है। सुनिएगा कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी नहीं, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी नहीं। और प्रेम कभी, हमारे आदरणीय सोम ठाकुर जी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, आज बहुत दिन बाद उनसे भेंट हुई है, आदरणीय रामेंद्र जी। तो ये 4 पंक्तियां और सुनिए। प्रेम कभी हारता नहीं है कि थक गए हैं मगर फिर भी हारे नहीं, थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। कंगन अब वो जो कंगन नहीं उतरा, जब नहीं उतरा तो गीत बना एक, मैं आपको सुनाता हूं। उसने कहा कि एक दिन मुलाकात हुई, कहा क्या करते हो, तो हमने कहा हम कुछ नहीं करते और क्या। तो बोले अखबार में आपका नाम पढ़ा था, तो मैंने कहा हाँ यही करते हैं। तो एक गीत आपको सुनाता हूं। हम कवि लोग ज्यादातर कहते नहीं वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा गान, तो अब उसका मतलब तो हमें नहीं समझ में आता, लेकिन ये जानता हूं कि ज्यादातर चोट खाए हुए लोग कवि बनते हैं। हम तो नहीं गए राजीव जी। तो मैं आपको सुनाता हूँ, गीत सुनिएगा। हम कवियों की जिंदगी क्या है कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र। हमारी कविता में ताली तुमको पता ही नहीं चलेगा कहाँ बजाना है, ये खासियत है। तुम ताल मिला रहे हो, हम बेताल गा रहे हैं। ये राजीव जी की कविता में संभव है कि कहाँ ताली आप बजाओगे, हमारे में पता नहीं चलता, हमको खुद नहीं पता चलता कहाँ बजवाना चाहिए। तो ऐसे पढ़ते हैं, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रातों रात भर तुझको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर। कवि लोग हैं क्या, पांव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पांव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही, जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह। और हम कवियों की जो ऊर्जा क्या है, आप सब सुनते हैं, स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, यही हमारे लिए ऊर्जा होती है। कुछ गीतों में चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली, पनघट घूमे फिर भी
अब तक अपनी प्यास बचा ली। पनघट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई। कुछ गीतों में जब हम रोए संग संग दुनिया रोई। संग संग दुनिया रोई। और अब हम कवि क्या हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा हूं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। ये बंद जो खास तौर पर है, राजीव जी आप सुनिएगा, वही आपका जो क्या है गुल्ली डंडा वाला, कि सुबह छपे अखबार में। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुवन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुवन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किसके कंगन पहन के निकले हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। तालियां बजा दीजिए आप एक बार बढ़िया से। और अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, तात जनक तनया है सोई, धनुष यज्ञ जय कारण हुई। राम जी पूछते हैं कि ये कौन है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जनक की पुत्री है जिसके कारण विवाह होना। तो वहां पुत्री तो नहीं है, यहाँ पुत्र है, बस इतना अंतर है। तो हमारे श्रद्धेय, हमारे आदरणीय, हम सबके कवियों के अग्रज और गुरुजन आदरणीय विष्णु सक्सेना जी हमारे बीच में हैं, जिनके गीतों की एक अपनी अलग छाप है, एक अलग रंगत है, एक अलग स्वर है, और दुनिया जिनके गीतों पर झूमती है, वो चाहे हम हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे आदरणीय बलराम जी हों, हम सब उनके गीतों से प्रेरित हुए हैं। कहीं न कहीं गीत लिखने की दिशा में उनका पाथेय, उनका साहित्य हमारा पाथेय बना है। मैं ऐसे आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूं, जिन्हें पूरी दुनिया में सम्मान कई देशों में मिला है, कई देशों में उन्होंने पढ़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उन्हें यश भारती सम्मान दिया है, और उन्होंने उस यश भारती सम्मान को इतनी सही जगह पर प्रयोग किया है, शायद ही किसी कवि ने किया हो। ऐसे महनीय गीतकार, महनीय रचनाकार आदरणीय विष्णु सक्सेना जी को आप आमंत्रित करें एक बार तालियां बजा करके। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। हमारे मंच का भी एक प्रोटोकॉल होता है। संतोषानंद जी खैर उनकी अवस्था थी इसलिए उनको जल्दी पढ़वा दिया गया था। एक सीनियरिटी का क्रम होता है, मेरे बाद आदरणीय रामेन जी पढ़ेंगे और उसके बाद इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे सोम ठाकुर साहब, क्योंकि हम सब में वरिष्ठ हैं वो। ये कवि सम्मेलन बहुत विकट परिस्थितियों में आयोजित हुआ है, और इतने हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम लोगों में भी ये कवि सम्मेलन जम जाएगा। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। मैं इन सारे कवियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन सारे कवियों ने एक फोन पर, किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस हम आ जाएंगे, और वरिष्ठ से लेकर के और कनिष्ठ तक जितने भी मेरे भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई, सब ने बहुत आदर देते हुए और इस कवि सम्मेलन में हाजिर हुए हैं। भाई मुकेश जी का स्नेह है जो मुझे याद कर लेते हैं, और मुझे बीच की एक कड़ी बनाया उन्होंने, और मैंने उस कड़ी का पूर्णतः निर्वाह किया। ये मुझे नहीं जानता कैसा हुआ निर्वाह, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार
सही हो वो दवा। यार तुमको सबकी कविताएं याद है क्या? कमाल है, ये 4-5 बच्चे हैं, हर कवि की कविता याद है इनको। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी, क्योंकि बहुत ऐसी स्थिति में तालियां क्या, अगर आप ढंग से सुन लें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहाँ तो शुरू से ही इतने हैं तो ये सारे के सारे असली हैं, वरना तो कवि सम्मेलन में लास्ट में बचते हैं इतने। हमारे तो शुरू से हैं, तो इसलिए पूरी गरिमा के साथ शुरू हुआ है ये। और क्यों अबे, सही बात है ना? चलिए एक मुक्तक और पढ़ के मैं भी उस प्रोटोकॉल का पालन करूंगा जैसे मेरे सारे भाइयों ने पालन किया है। एक तो मुक्तक, उसके बाद एक छोटा सा गीत, और मैं भी अपनी जगह पे बैठूंगा। पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में थी, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में पढ़ता हूं। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। ए भाई, आप लोग सुन नहीं रहे तो बातें भी मत करिए प्लीज। देखिए इन लोगों से सीखिए, 4 लोग बैठे हैं, कितने प्यार से सुन रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, यहां तक आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा लोग होते तो पता नहीं पड़ता। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। एक मुक्तक और पढ़ दूं अगर आप इजाजत देते हैं तो। जरा कैसे दी जाती इजाजत, जरा सलीके से बता दीजिए। वेरी गुड। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, दाद चाहिए अब आपकी। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। जैसा गजेंद्र ने जिक्र किया था कि मैंने यश भारती की 11 लाख रुपए की राशि को कैसे उपयोग किया, वो ईश्वर की कृपा रही। और आज ये 3 कवि मंच पर बैठे हैं जो मेरे ट्रस्ट से पुरस्कृत सम्मानित हो चुके हैं। हमारा प्रियांशु भी है, बलराम भी है और राजीव राज भी है। इनको प्रतिवर्ष में 51,000 रुपए से सम्मानित करता हूँ। एक गीतकार का मेरा ध्येय है हर प्रतिवर्ष एक गीतकार को सम्मानित करना। चलिए गीत पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो,
हम तुम्हारी कसम तोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। बंद पड़ता। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, मुकेश जी की बहुत व्यस्तता है, ऊपर मीटिंग चल रही है उसको भी देखना है, यहाँ का भी सम्मेलन चल रहा है उसको भी देखना है। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए, शाम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। मुझे मालूम थी आपकी दादाई। शाम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा उड़ कर देखिए, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में। गीत की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ, गीत को सिकोड़ता हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए मुझे सिकोड़ना चाहिए अपने को। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे उद्यान में ये मनादी करें। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं कि हमको जितना दिखा, मुझे नहीं मालूम आप कैसे नवाजेंगे, हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। एक बार हाथ ऊपर करके बजा दीजिए। चांदनी रात में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्रमशः सुनते जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक गीत, ऐसे लगता है, मन करता है कि पल थम जाए, लेकिन वही थम नहीं रहा, वो बढ़ रहा लगातार। आइए, विष्णु जी की तारीफ में क्या कहा जाए, उनको तो तारीफ करना बिल्कुल समझ लो सूरज को दिया दिखाना है, या ये कह लो कि हिमालय को आइसक्रीम दिखाना है, और थोड़ा आगे बढ़ो तो यादों को भैंस दिखाना है। तालियां बजा दो बढ़िया। ये समय के हिसाब से बदलता रहता ना मुहावरे। यही प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद का मतलब यही है कि जब आप उपमानों को, मिथकों को, अब पहले के सब कवि थे, उनको गालों में गुलाब दिखता था, होठों पे कमल दिखता था, बालों में बादल दिखता था, अब नहीं दिखता है। तो जब नहीं दिखता तो अब कभी वैसे लिख रहे हैं। तो हमारी आपने कविता तमाम सुनी होगी, उसमें हम लिखते रहते हैं, चुनरी ध्वजा सी लहरा रही अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आए।
पहले काजल में वो दिखता था, बादल मयूर दिखता था, हिरनी दिखती थी, अब हिरनी नहीं दिखती। दूसरे बाबा जी का जब से सरकार आई तब से और नहीं दिखती। हाँ, तो नहीं, पहले सौंदर्य को देख के कोमलता आती थी, अब देख करके भय उत्पन्न होता है। तो श्रृंगार रस की कविता जो है वो भय रस की ओर, वो मतलब भय की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे। लेकिन उसमें भी डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जैसे कोमल हृदय गीतकार हैं जिन्होंने उस संवेदना को बचाए रखा है जो कालिदास के मेघदूतम से झर के यहाँ तक पहुंची। आइए हमारे बीच में अब हमारे 2 महनीय कवि बचे हैं, तो वही दोनों शेष हैं और वही विशेष हैं। हमसे एक बार किसी ने पूछा गंगा बड़ी कि जमुना, तो हमने कहा हमारे लिए दोनों बड़ी, चाहे जी में कूदें डूब जाएंगे। तो तालियां बजाते रहिए जहां जहां समझ में आए। अच्छा, कवि सम्मेलन आपको बढ़िया लगा होगा, एकदम अच्छा था ये, भले ही कम समय का था लेकिन बढ़िया था। आदरणीय मुकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम कवियों के कपड़ों में एक बार फिर से स्त्री हो गई, वरना ये तहाए रखे हुए थे पिछले 3 महीने से। आज घर से निकल रहा था तो लग रहा था मैं भी काम पर जा रहा हूँ, वरना हाँ सच में, वरना पैर में दर्द हो रहा था। मैंने पत्नी से कहा कि पैर में थोड़ा सा पेन हो रहा, तो बोली कि जो है दिन भर पड़े रहते हो तो पेन होगा करी। मतलब वो इनडायरेक्टली बता रही कि आप बेरोजगार हो, इस समय कोई काम नहीं है आपके पास। तो आइए हमारे बीच में गीतों को आप लगातार देख रहे हैं, श्रृंखलाबद्ध जैसे सीढ़ियां चढ़ते हुए कविता बढ़ रही है। हमारे बीच में आदरणीय रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। हम कवियों के गुरु हैं और हम सबके संरक्षक हैं। आइए उनका गीत सुनते हैं। आदरणीय रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी आगरा से हमारे बीच में पधारे। एक बार तालियां बजा करके ऐसे महनीय गीत ऋषि को आमंत्रित कीजिए। त्रिपाठी जी, धन्यवाद गजेंद्र जी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि श्रोता कम हैं। मेरे साथ ऐसा ही घटित होता रहा है अब तक। सारी उम्र जब हमको हमारा और सोम ठाकुर जी के पढ़ने का समय आता है तो इससे भी न्यून श्रोता होते हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। आपका मैं ताली बजा रहे हैं, ये भी कुछ नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ। भाई मुकेश जी ने बहुत ही किया है। अब कभी कभी तो वरिष्ठ होंगे, ये भी वरिष्ठ होंगे जो हमारे साथ कर रहे हैं, इनके साथ वो करेंगे। ये बहुत अच्छे ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं और सबकी कविताएं दोहरा रहे हैं। कश्ती तलाशने में खर्च हो गई है उम्र, जब मिली कश्ती तो फिर दरिया उतर गया। अब कहा जाता है कि साहब गीतों का ये वो, कुछ नहीं है, गीत ही लिखे हैं और कुछ नहीं की गीत गंगोत्री है। मैं भी अपना योगदान करता हूं। कहता हूं कि हादसों में हौसला लेकर चलो, जब चलो कुछ फैसला लेकर चलो। हादसों में हौसला लेकर चलो, जब चलो कुछ फैसला लेकर चलो। जाने कब हो जाए किससे दुश्मनी, दोस्ती में फासला लेकर चलो। हमारे पेट में मोती है, ये हमें सीपी बताती है। सिंह साहब, हमारे पेट में मोती है, ये हमें सीपी बताती है। किसे है भूख कितनी है, हमें रोटी बताती है। आहा, वाह। किसे है भूख कितनी है, हमें रोटी बताती, हमें रोटी बताती है। और बुलंदी पर पहुंचने का सफर दुश्वार है कितना, हमें चढ़ते हुए गिरते हुए चींटी बताती है। आहा, वाह 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 वाह। ये कविता जैसे भी है, कविता का ये उत्सव है और मौसम भी है, कविता का ही मौसम है। मुझे भी आदेश भाई विष्णु सक्सेना जी का था कि कम से कम सुनाना है। मैं कम से भी कम सुनाने की चेष्टा में हूं। स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत। एक बार सुन
एक बार सुन, एक बार सुन या तू हजार बार सुन, एक बार सुन, एक बार सुन, एक बार सुन या तू हजार बार सुन, जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार सुन, एक बार सुन, एक बार सुन या तू हजार बार सुन, जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार सुन, बार बार सुन। सब्जियां खरीदते हो छत पर खड़े खड़े, सब्जियां खरीदते हो छत पर खड़े खड़े, और जीत चाहते हो युद्ध में बिना लड़े, और जीत चाहते हो युद्ध में बिना लड़े, लेके दे के क्या गए हो ये न सोचना पड़े, इस जहां से जा चुके हैं कितने ही बड़े बड़े, वाह 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 वाह, कितने ही बड़े बड़े। सब्जियां खरीदते हो छत पर खड़े खड़े, और जीत चाहते हो युद्ध में बिना लड़े, लेके देख क्या चले हो ये न सोचना पड़े, इस जहां से जा चुके हैं कितने ही बड़े बड़े। तो वक्त आसमान है, वक्त आसमान है, तू वक्त की पुकार सुन, एक बार सुन या तू हजार बार सुन, जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार सुन, जिंदगी मिली नहीं मिलेगी बार बार सुन, एक बार सुन, एक बार सुन। जुगनुओं की रोशनी को रात की तलाश है, जुगनुओं की रोशनी को रात की तलाश है, अंधकार में छुपा हुआ विमल प्रकाश है, अंधकार में छुपा हुआ विमल प्रकाश है। कौन है सुखी यहाँ तो कौन बदहवास है, तू अहम का कर दफन खुशी तो तेरे पास है, तू अहम का कर दफन खुशी तो तेरे पास है। फिर सदन में आएगा, फिर सदन में आएगा एक नया निखार सुन, एक बार सुन या तू हजार बार सुन, जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार सुन, जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार सुन। अंतिम है इस गीत का, स्वागत निवेदित है, स्वागत। एक बार जिंदगी की भूल तो सुधार ले, एक बार जिंदगी की भूल तो सुधार ले, एक बार तू किसी को प्यार से पुकार ले, एक बार जिंदगी की भूल तू सुधार ले, एक बार तू किसी को प्यार से पुकार ले, पुकार कर संवार ले, संवार कर दुलार ले, पुकार कर संवार ले, संवार कर दुलार ले, मिल नहीं सकी किसी को मौत भी उधार सुन, एक बार सुनी तू हजार बार सुन। गीतों में भारतीय दर्शन की जो परंपरा है, नीरज जी की, बच्चन जी की, उस परंपरा को आगे आदरणीय ने निर्वाहित किया, आपने सुना। उसके बाद आपने अभी तक गीत ऋषियों को सुना। अब गीत के महर्षि आदरणीय सोम ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान से आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस कवि सम्मेलन की पूर्ण परंपरा का निर्वाह करते हुए अध्यक्षीय काव्य पाठ करें। आदरणीय सोम ठाकुर जी, आप सब, आप, हाँ मैं ले आता हूँ, आप सब एक बार तालियां बजाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंशु भाई, ढंग से लगा दो इसे। आदरणीय महानुभावों,
सबसे पहले तो मैं इतने सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब कवि का निधन होता है तो ये शरीर तो चला जाता है, लेकिन वो रचनाओं के माध्यम से हमेशा रहता है। इस पर एक मुक्तक है, राजू भाई सुनिए। खतरे से समंदर तक गुमनाम सिलसिला हूँ, खतरे से समंदर तक गुमनाम सिलसिला हूँ, तोड़े हजार बंधन हर कैद में रहा हूँ, तोड़े हजार बंधन हर कैद में रहा हूँ, कदना पुने को मेरा बेचैन आसमां है, कदना पुने को मेरा बेचैन आसमां है, छोटा हूँ जिंदगी से पर मौत से बड़ा हूँ, छोटा हूँ जिंदगी से पर मौत से बड़ा हूँ, छोटा हूँ जिंदगी। और एक प्रतिनिधि गीत पढ़ने के लिए मुझे डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने आदेश दिया है। स्वागत। तो ये मेरी प्रतिनिधि कविता है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड जब कभी कार्यक्रम होते हैं हमारी एम्बेसीज वगैरह में, राष्ट्रीय 26 जनवरी या 15 अगस्त को, इस रचना से वहां शुरू होता है। सुनिएगा। मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ाता था तो उस समय हमारे यहाँ की लड़कियों ने कहा कि हम ग्रामीण वेशभूषा में आधा घंटे की एक नृत्य नाटिका खेलना चाहते हैं, उसके लिए लिखिए गीत। तब मैंने ये गीत लिखा था, मुझे पता नहीं था कि ये मेरी सिग्नेचर पोएम हो जाएगी। एक बार मैं दरभंगा जा रहा था तो एक नेत्रहीन व्यक्ति इस कविता को गा करके और भीख मांग रहा था। तो मैंने कहा कि ये किसकी कविता है भाई? बोले साहब हम तो जानते नहीं, हमने तो रेडियो सुन सुन करके याद कर लिए। मैंने कहा भैया ये मेरी कविता है, और 50 रुपए का नोट था, मैंने दिया। मैंने कम से कम एक आदमी को रोजी रोटी तो दे रही है। सुनिए। वाह वाह। सागर चरण पखारे गंगा शीस चढ़ावे नीर, सागर चरण पखारे गंगा शीस चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं, सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नीर, उत्तर अमरनाथ दक्षिण में रामेश्वर मन मोहे, पूरब पुरी विराजे पश्चिम दिशा द्वारका सोहे, जो नहावे मथुरा जी काशी छूटे लक 84, कान्हा रास रचे वृंदावन में जमुना के तीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। कश्मीर। फूटे रंग भोर के वन में खोले गंध की वरियां, हरी झील में चप चप तैरे मछली सी किन्नरियां, लहर लहर में झेलम झूमे गावे मीठी लोरी, पर्वत के पीछे सोवे नित चंदा सो कश्मीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। हमारे नारी की मर्यादा। सूरज थके सांझ की बिरिया, थके खुरपिया हंसिया, वाह। सूरज थके सांझ की बिरिया, थके खुरपिया हंसिया, एक लो बैठ मेड़ के ऊपर बिरहा छेड़े रसिया, विष डूबी वंशी के बैना गोरी कैसे समझे, गोरे तन पे लिपटी है गोरे मन की जंजीर, वाह वाह। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। हम ऐसे सौभाग्यशाली देश के वासी हैं जहाँ 6 ऋतु में परिक्रमा देती हैं। वहाँ कनाडा चले जाइए, एक बार 2.5 महीने के अंतर से मेरा जाना हुआ, पता चला सूरज ही नहीं निकला है वहां। कोई देश है
चैत चांदनी हंसे पूस में पछुआ तन मन पर से। जेठ तपे धरती पार्वती, जेठ तपे धरती गिर जासी सावन अमृत बरसे। फागुन भर भर मारे ऐसी केसरिया पिचकारी। आंगन भीजे तन मन भीजे, भीजे पचरंग चीर। सोहे भारत की माटी है चंदन और अबीर। सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं। हमारी कृष्ण संपदा मक्का जो पुखराज जोड़री जैसे मोती दमके। अम्मा कूटे धान खिचामर हीर कनी से चमके। हर 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 हराय के हेरे गह गहाय के गेहूं। बने खेत खलिहान सलोने सोने की जागीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं। इस बंद पर ध्यान दीजिएगा। राजा विकेट हरिश्चंद्र मोरध्वज। राजा विकेट का में भैया ऐसो देश हमारो। सत के पालन हारो सुत के शीस चदावे आरो। लक्ष्मण जागे सारी रहना सीता तपे रसोई। वल कल तन पे धारे बांधे जटा जूट रघुवीर। वाह। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। सौ सौ नमन करूं मैं भैया, सौ सौ नमन करूं। और ये देखिएगा 4 पंक्तियों में गीता। टूटे मोह पाश गीता जी ऐसे वचन उचारे। 5 पंडवा जीते रन में 100 100 कौरव हारे। अर्जुन अत्याचार सहे ना सहे भीम भीम मन मानी। अर्जुन अत्याचार सहे ना सहे भीम भीम मन मानी। धर्म राज को धर्म मिटावे पाथर खिंची लकीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। 100 100 नमन करूं मैं भैया, 100 100। हमारा लोक जीवन फूटे फरी मटर की भुटिया भुने झरे झर बेरी। मिले कलेऊ में बजरा की रोटी मठा महेरी। बेटा मांगे गुड़ की डेली बिटिया चना चबेना। भाभी मांगे खट्टी अमिया भैया रस की खीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। 100 100 नमन करूं मैं भैया, 100 100 नमन करूं। मंगल भवन अमंगल हारी के गुण तुलसी गावे। सूरदास को श्याम रंगो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हंस के पिए गरल को प्यालो प्रेम दीवानी मीरा। जो की त्यों धर दई चदरिया कह गए दास कबीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। 100 100 नमन करूं मैं भैया, 100 100 नमन करूं। कुछ हमारे मुस्लिम भाई भी ऐसे हुए हैं पूरी निष्ठा के साथ हमारी साझा संस्कृति में शामिल हुए। नित रस कान पठान गाय ब्रज की लीला लासानी। रोशन सिंह के संग दे अशफाकुल्ला कुर्बानी। 4 हाथ धरती कूतर से शाह जफर की काया। गाय कन्हैया को बालापन जन कब मियां नजीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। 100 100 नमन करूं मैं भैया, 100 100 नमन करूं। सन 57 को याद किया है। अभी न लाली छूटी भैया, अभी न बेदिन भूले। अभी न लाली छूटी भैया, अभी न बेदिन भूले। वीर लाड़ले सीनो ताने फांसी ऊपर झूले। गोलावर से डंगी पीठे बंधी तोप के आगे। अंगारन में कौंधी सन 57 की शमशीर। मेरे भारत की माटी है
चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और अंतिम पंक्तियां हैं, इसमें अंतिम पंक्ति में कश्मीर की समस्या की ओर संकेत है। ऐसो कछु करो मिलजुल के, ऐसो कछु विचारो, फरर फरर फर्राए तिरंगो, चक्कर पैया वारो, कहूं न अचरा, भारत माँ का, कहूं न अचरा अटके या को, कहूं न पिचे अंगुरिया, दूर करो या धरती मैया के माथे की पीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। इसका विराम में एक ब्रजभाषा का मेरा छंद है, उससे मैं पढ़ कर रहा हूँ। जिस समय भगवान श्री राम का लव से युद्ध हुआ तो उन्होंने कहा कि जानकी से कि तुम अग्नि परीक्षा दो कि तुम पवित्र हो। उस समय राम ने, लक्ष्मण ने केवल चरण देखे थे उनके, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? श्री राम ने वरमाल पहनी थी पाणे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? लवकुश ने स्तनपान किया था, उस पर क्या प्रभाव? सारी सृष्टि ने दर्शन किए थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? पद जात भरे दृग देवर के, हिय में अवसाद घने रोभयो, पद जात भरे पद जात भरे दृग देवर के, हिय में अवसाद घनेरो भयो, कर जात हे राम के अंतर में, अभिराम विषाद को घेरो भयो, धनु भंजन हारी भुजा फर की, सुध में बरमाल को फेरो भयो, उर जात हे सूखे, लवकुश, उर जात हे सूखे सपूतन के मुख, आनन जात अंधेरो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सोम ठाकुर जी ने अध्यक्षीय कार्यपाठ किया। बहुत अद्भुत कवि सम्मेलन जो जिन परिस्थितियों में हुआ उस सबके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भाई मुकेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर कि वो सब कवियों का आभार व्यक्त करें। तो और एक और बात बताऊं, अभी इस कवि सम्मेलन के बाद चाय लेकर के सब लोग जाएं, हाई टी है। धन्यवाद विष्णु भाई। निश्चित रूप से जितने ऑडियंस होने चाहिए थे, जितने प्रमुख कार्यक्रमों में नहीं था उतने लोग नहीं थे, बट निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सम्मान करने के उद्देश्य से कार्यक्रम हुआ था और जितने लोग थे वो सब आपके लोगों के प्रशंसक थे।
सब बंद करो, बंद करो, सोफे हटाओ। चलो और रखा है। हाँ, इतने लोग हमारे दोस्त की सोफे रखवाने।